BEA aspires to catalyze collective efforts to heal the earth. I can say that small sustainable actions can create a ripple effect of change. Bioenzymes are not just a solution, but they are a movement towards harmony with nature. So this was our last speaker, PTG from Bioenzymes Entrepreneur Academy. We have more speakers coming in, but before I hand over to Sonu sir, I would just like everyone to know that next month we are celebrating, as in the month of January, we are celebrating it as the month of bioenzymes, because on 4th of January, we will be celebrating the World Bioenzymes Day. It happens to be the birthday of our Dr. Rusukon, who's our mentor. So on behalf of World Bioenzyme Day, we are hosting a webinar for 3 days, and we would invite all of you. We would like to invite all of you present here for this webinar, which is called BEAT, as in beat, BEAT, beat the soil pollution, air pollution, and the water pollution with bioenzymes. Thank you so much, everyone. And over to you, Sonuji. Yes. Thank you so much, sir. Up here. To our next speaker, Dr. Pankaj K. Gupta, sir. We are inviting. So, sir. जी नमस्कार, सादर प्रणाम सभी लोगों को। आई थिंक सोनू जी मेरी आवाज आ रही होगी। जी जी जी, एक मिनट सर, एक मिनट सर, I want to address you. हमारी टीवी पूरी होने दीजिए सर। I want to मुझे address you. को होस्ट बना दीजिए तब तक। धन्यवाद। अच्छा ठीक। Dr. Pankaj Gupta, sir, is a scientist and academic currently serving a Ramanujan Fellow and the president of IIT Delhi Technology Institute of Technology in India. As the part of Ramanujan Fellowship, Gupta sir leading the groundbreaking research project, engineered microbiome is in healthy invitation and the microbiology, hydrogeology, and the chemical science of develop cutting-edge solutions of the research contribution sites as the at the Atal by the Atal National Research Fellowship ANRF under the Government of India. The additional his work at IIT Delhi, Dr. Gupta also serves as the Agents University of Waterloo, Canada, highlights to the significant contributions of the global scientific research and the education. Dr. Gupta, sir, expands and the range to the settle environment and the hydrological challenges, including water wastage, resources management, and rural areas and hydrology, and the study of subsurface water flow. So we are going to invite Dr. Pankaj sir. So thank you very much dear Lakshya ji for इतनी अच्छी तारीफ करने के लिए। वैसे मैं दरभंगा से ही हूं, तो अपने घर में अपनी बातें सुनना थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, फिर भी धन्यवाद। आप शायद मैं शेयर करने के लिए कंटेंट अलाउड हूं, सो धन्यवाद। मुझे एक बार फिर से इसको शेयर करने दें। एंड यस, आई थिंक कि मेरा स्क्रीन आप लोगों तक विजुअल होगा। यस सर, यस सर। तो आज की सुबह बायो एंजाइम की सुबह थी, और तब से मैं लगातार बायो एंजाइम पे कई ज्ञान आप लोगों से हासिल कर रहा हूं। और ये वाकई एक सौभाग्य की बात है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से इस नेशनल वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। और मैं देख पा रहा था कि कई सप्ताह से इसके लिए काफी कुछ तैयारी चल रही थी, जिसमें कि बायो एंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी की जो एसोसिएशन है, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर राव और सभी हमारे मित्र लीड करते हैं, वो भी काफी कुछ लगे हुए थे। कई हमारे कलीग्स ऑलरेडी इसमें स्पीकर रहे, जैसे डॉक्टर प्रीति राव जी थे,
और हमारे सीनियर हैं डॉक्टर तिवारी, वो भी अभी बोलने वाले हैं, और काफी कुछ बहुत कुछ सीखने को सुबह से मिला है। So friends, what I am going to discuss and interact about is the remediation of contaminated sites using bioproducts. Especially हम इस पर फोकस करेंगे कि बायो एंजाइम्स का क्या रोल होगा। So again, thank you very much for this opportunity, because कि अपने विश्वविद्यालय में बात करना एक सौभाग्य की बात होती है। मैं भी बिहार से ही हूँ, बिहार के दरभंगा समस्तीपुर से बहुत ही पूरा मैंने मेरा जीवन ही वहीं से शुरू हुआ है, तो वहां पे बोलना और वहां के लिए कुछ करना हमेशा सौभाग्य की बात रहती है। इस सेशन का उद्देश्य, जो अगले 30 मिनट हम इंटरेक्ट करेंगे, उसका मुख्य उद्देश्य होगा कि एक बेसिक नॉलेज अपने जो ऑडियंस है उनको पहुंचाना अबाउट सॉइल एंड ग्राउंड वाटर सिस्टम, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि बायो एंजाइम या अदर टेक्नोलॉजी को हम सॉइल के लिए, इन्वायरमेंट के लिए और ग्राउंड वाटर सिस्टम के लिए प्रयोग कर सकते हैं, बट हमें ये जानना जरूरी है कि वाकई ये सिस्टम है क्या, और फिर ये समझना जरूरी है कि हम बायो एंजाइम या अदर प्रोडक्ट को जिसके लिए जिस कंटामिनेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं वो कंटामिनेंट्स क्या है, उनके सोर्सेज क्या है, और फिर हम ये तय करें कि क्या एक्सपर्टाइज अप्रोचेज हो सकते हैं ऐसे कंटामिनेटेड लैंडस्केप को ठीक करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ हम सब अपने दैनिक जीवन में सॉइल पर निर्भर हैं, और ये हमारे लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट है, जो एक लिविंग सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे सूक्ष्म जीव भी हैं, वहाँ पे जल है, वहाँ पे मृदा के जो मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन है वो भी है, और साथ ही साथ जब भी हम बात करते हैं सॉइल की तो गुणवत्ता की बात करते हैं कि ये सॉइल की कितनी गुणवत्ता है, और उस गुणवत्ता पे पूरा जो इकोसिस्टम सर्विसेज है निर्धारित होता है। और जब सॉइल अच्छा परफॉर्म करे, कैपेसिटी उसकी अच्छी हो परफॉर्मेंस का, फंक्शन का, तो हम कहते हैं कि सॉइल इज हैविंग गुड क्वालिटी। आप जाएंगे डेजर्ट में तो क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो अपने इकोलॉजिकल फंक्शंस को रिलेटिवली कम परफॉर्म करते हैं। बट जब आप कोई कुछ उर्वरक क्षेत्र में जाते हैं, जैसा कि दरभंगा समस्तीपुर का अपना क्षेत्र देखें, तो वहाँ देखेंगे कि सॉइल की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। पूरे विश्व में अगर माना जाए तो सबसे अच्छी गुणवत्ता की सॉइल इस रीजन में पाया जाता है। तो क्यों? क्योंकि हमारी सॉइल की गुणवत्ता अच्छी है, क्योंकि वो अच्छे इकोलॉजिकल फंक्शंस को या अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में कैपेबल है। उसी तरह मित्रों, वाटर भी एक सॉइल से ही एसोसिएटेड हमारे पास रिसोर्स है, जो कि हमेशा आप देखेंगे कि सॉइल के साथ मिलजुल करके ही रहने की प्रवृत्ति रही। जो सॉइल जल चक्र है, उस जल चक्र से इनफिल्ट्रेट होकर के ग्राउंड वाटर सिस्टम बनाती है, और जहाँ पे भूजल में यानी जमीन के अंदर पानी सुरक्षित होकर के हमें फिर पेयजल के रूप में मिलती है। तो ये एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, जो हमेशा आप देखेंगे चलते रहती है। लेकिन वाटर की गुणवत्ता का तय करना हमारे प्रयोग के आधार पे होता है। हम वाटर का प्रयोग किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, हम उसी पर्पस के आधार पे वाटर के गुणवत्ता को तय करते हैं। ज्यादातर देखेंगे कि सॉलिड्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, गैसेज होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे सॉइल्स में, वाटर में, और इसीलिए वाटर की क्वालिटी को हम जनरली बहुत सारे पैरामीटर्स से आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जब हम सॉइल और ग्राउंड वाटर को अलग अलग देखते हैं, तभी हम फेल कर जाते हैं, तभी समस्याएं उत्पन्न होने शुरू हो जाती है। जबकि आप देखेंगे सामान्य तौर पे सॉइल और ग्राउंड वाटर सिस्टम या सॉइल और वाटर सिस्टम जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई व्यवस्था है, चाहे वो पॉन्ड का हो या ड्रेनेज का हो या आप एक्यूफर का देख ले। तो जो हमारा एक्यूफर है, ग्राउंड वाटर है, वो एक ऐसा मैंने सिंचित क्षेत्र है, सेचुरेटेड एरिया है, जहाँ पे पूर्णतः जो पोर हैं, छोटे छोटे पोर हैं मिट्टी में, वो भरी हुई होती है। ज्यादातर वो सामान्यतः जैसे दरभंगा और इन क्षेत्र में थोड़ा सा रिलेटिवली ऊपर है, जिसे सैलो ग्राउंड वाटर कहते हैं, जिसे हम बहुत ही कम गहराई से निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये बहुत डीप होते हैं, 200-400 फुट नीचे होते हैं, उसे हम डीप एक्यूफर और डीप ग्राउंड वाटर सिस्टम कहते हैं। और जो इन दोनों के मैंने ऊपरी सतह के और ग्राउंड वाटर सिस्टम के बीच का लेयर होता है, उसे हम जनरली ग्राउंड वाटर टेबल कहते हैं। और इसकी जानकारी हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि अंततः जो हम पीने की पानी लेते हैं वो ग्राउंड वाटर सिस्टम से लेते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगी कि विश्व में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हम भारत में करते हैं। जो हमारा न्यूट्रिएंट है,
वो कहीं ना कहीं ये सॉइल वाटर सिस्टम से आता है। चाहे वो पौधे अपने में लें और फिर हम उसे भोजन आहार श्रृंखला के तहत भोजन में प्रयोग करें, या फिर हम डायरेक्ट ग्राउंड वाटर को कंज्यूम करें, उसमें न्यूट्रिएंट आ रहा हो। आज डिस्कशन का एक मैटर है कि आरओ सारे न्यूट्रिएंट को छांट देता है, तो इसका मतलब पहले न्यूट्रिएंट है उसमें, तभी तो छांटता है। तो न्यूट्रिएंट का एक सोर्स जो है वो वाटर है। और फिर देखें कि एनर्जी बजट जो है, कई कई से ऐसे क्षेत्र हैं, खास करके आप दरभंगा में हैं, वहां देखेंगे जहाँ पे तालाब होंगे या जहाँ ग्राउंड वाटर का सोर्सेज है, वहां पर आप एनर्जी बजट देखिएगा ठीक ठाक है। मैंने आप वो शीतलता को अनुभव करेंगे एटमॉस्फेयर में। बट अब वही चीज दिल्ली गुड़गांव आ जाए, जहाँ पे तालाबों की संख्या कम होती जा रही है, ऐसी ऐसी व्यवस्था कम होती जा रही है, वहाँ गर्मी भी बढ़ रही है, हीट आइलैंड की कॉन्सेप्ट वहाँ पे आ रही है। सो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हर एक पल इन्हीं सिस्टम्स पे डिपेंडेंट है। लेकिन हमारे साथ इन सिस्टम पे डिपेंडेंसी के साथ साथ हमने इनके लिए खतरा भी पैदा कर दिया है। आपको बात सुबह से ही हम सब चर्चा कर रहे हैं म्यूनिसिपल वेस्ट की, इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट की। डॉक्टर सिंह ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कैसे इफ्लुएंस जनरेट होते हैं इंडस्ट्री से। सो ये सारी इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या म्यूनिसिपल वेस्ट हो, ये सारी चीजें हमारे इस सिस्टम को बर्बाद करने के लिए लगी हुई है, जो हमारी सॉइल एंड ग्राउंड वाटर सिस्टम। देन वी आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग सैलिनिटी। अब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिया, जैसे पंजाब के रीजन में, या अब कुछ हद तक बिहार के भी दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों में, जहां पे हमने इवेपोरेशन बहुत ज्यादा कर दिया। तो क्या हुई कि जो साल्ट थी सॉइल में रह गई और सैलिनिटी का हो गया। वैसे ही समुद्र के क्षेत्र में, समुद्री तटवर्तीय क्षेत्रों में हमने सी वाटर इंट्रूजन करा दिया, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, जिसके कारण सी वाटर घुस गई हमारे एक्यूफर्स में। आजकल आप में से सभी लोग अवगत होंगे और सहमत भी होंगे कि एक्यूफर जो है सबसे माने सस्ता कहा जाता है और सबसे सेफ जगह कहा जाता है वेस्ट डिस्पोजल के लिए, जो कि एक बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस जन्म ले रही है पूरी दुनिया में। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का इंजेक्शन हो, न्यूक्लियर वेस्ट का इंजेक्शन हो, या सॉलिड वेस्ट का, म्यूनिसिपल वेस्ट का, इफ्लुएंट जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, ये सभी चीजों का जो रिसाव है, या उन्हें कहिए फोर्सफुली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, दोनों तरह से एक्यूफर में स्टोर कर रहे हैं वेस्ट मटेरियल को। और ये सब खतरनाक व्यवस्थाएं अभी चल रही है। फिर सेफ्टी टैंक का देख लें इशू। अब सेफ्टी टैंक हमारे यहाँ बनती है, उसमें कोई बैरियर नहीं होता है। आजकल जो सस्ती स्कीम्स के तहत 7-8 हजार में से और 10,000 में जो सेफ्टी टैंक और टॉयलेट्स बन रहे हैं, और फ्लड प्लेन एरिया जैसे दरभंगा, मोतिहारी, बेतिया, ये सब क्षेत्र, हमारे समस्तीपुर, इन सब क्षेत्रों का अगर एरिया देखें जहाँ पे बराबर फ्लड आता रहा हो, जहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल बहुत नजदीक हो सरफेस के, वहाँ पे पैथोजेंस का सेफ्टी टैंक से लीकेज होना। और फिर भी देखें बहुत सारे जगह पे मैंने देखा है कि उसे एक ट्रक में सीवेज को भर के ले जाकर के नदियों में, तालाबों में छोड़ देते हैं। उसके कारण, वेस्ट वाटर इरिगेशन के कारण, ये बहुत बड़ा समस्या होता जा रहा है। लाइकवाइज एग्रो केमिकल का इनफ्लो एक भी बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, क्योंकि आप एग्रो केमिकल हमेशा खेत में उर्वरक का प्रयोग करते हैं, और वो एक रिटर्न फ्लो है, या तो ग्राउंड वाटर में सीप कर जाता है, या फिर नदियों में या तालाबों में प्रवाह कर जाता है। और सबसे लास्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे जगह ऐसे तालाब, ऐसे ऐसे जल स्रोत हमारे डिसअपेयर हो रहे हैं। स्प्रिंग्स हिमालयंस में देख लें, या आप अभी दरभंगा क्षेत्र में ही देखें, पहले तालाब होते थे, अब प्लेग्राउंड है, क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे वहां पे, तो वो डिसअपेयर होते जा रहे हैं। ये सारी चीजें हमें बताती है कि कितना हमें सेंसिटिव होना चाहिए अपने सॉइल और ग्राउंड वाटर सिस्टम के तरफ। और दूसरी जो प्रदूषण का खतरा है वो है, तो प्रदूषक कहते हैं ऐसे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में जब चेंजेज आ जाती है सॉइल वाटर और सॉइल का, वाटर का और एयर का, ऐसे कुछ ऐसे केमिकल्स हो, कुछ ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट हो, इनके प्रयोग होने से, इनके इंट्रूजन से, इसे हम पॉल्यूशन बोलते हैं। पॉल्यूटेंट उस वैसे एजेंट्स को बोलते हैं। वो माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, वो गैस भी हो सकते हैं, वो सॉल्यूट भी हो सकते हैं। तो आप नीचे के पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक क्षेत्र है काफी सुंदर सा दिख रहा है, और एक क्षेत्र है जहाँ वेस्ट डंप यार्ड है, सीपेज हो रही है, बहुत सारे छिड़काव हो रहे हैं, प्लास्टिक्स बिखरे हुए हैं, और ऐसी पॉल्यूशन की एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है।
और ऐसी प्रदूषण की जो पहली, जिसे हम आप परख पाते हैं, जिसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम आप जाएं और कहें हाँ ये स्रोत है प्रदूषण का, ऐसे इजिली आइडेंटिफाइड करने वाले सोर्स को, पोल्यूशन के प्लेस को हम एक कैटेगराइज करते हैं, दैट इज पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। और ये जानना इसलिए जरूरी है कि बायो एंजाइम की जब हम एप्लीकेशन पे बात करेंगे तो हम पुनः इस पे बात करेंगे। जैसे कि आप पेट्रोकेमिकल स्टेशन देख लें, आप देख लें जो वेस्ट को इंजेक्ट किया जाता है एक्यूफर में, वैसे सिस्टम को देख लें, या सीवेज जो लीकेज होती है सेप्टी टैंक से उन्हें देख लें, या ट्रीटमेंट प्लांट से देख लें। इस तरह के कई तमाम चीजें हैं जो पॉइंट पोल्यूशन में आते हैं। नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन वैसे पोल्यूशन को कहते हैं जिसको हम इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कृषि में प्रयोग किए जाने वाले नाइट्रेट, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, जैसे कि कोई ऐसी रेन जिसमें प्लास्टिक्स हो। अभी पटना में पटना IIT पटना का एक स्कॉलर ने रिसर्च किया जिसमें पटना में रेनफॉल में ही प्लास्टिक्स पाए गए। तो हमें इनसे सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी या अप्रोच होती है उनका अप्रोच भी अलग होता है। अभी हम कई प्रकार के प्रदूषकों से, कंटामिनेंट से, चाहे जियोलॉजिकल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, परेशान है भारत में मुख्यतः आर्सेनिक हम सब जानते हैं। बिहार के अंदर हमारी गंगा का बेल्ट जो है, उस गंगा के बेल्ट में खास करके समस्तीपुर, वैशाली, पटना और ऊपरी क्षेत्र जो है बंगाल से जुड़े हुए क्षेत्र जो है कुछ, उसमें हमें आर्सेनिक की समस्या है। फ्लोराइड रोहतास जिले में, हम अपने बिहार में रोहतास जिले में फ्लोराइड को हम एक्सेस करते हैं। आप देखें नाइट्रेट को हम दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी ऐसे क्षेत्रों में हम आयरन को वहां पे हम देख पा रहे हैं। उसी तरह आप देखेंगे कि भारत के अन्य क्षेत्रों में जैसे पंजाब हो गया, आप देखें जैसे बेंगलुरु हो गया, वहाँ यूरेनियम, सेलेनियम ऐसे जैसे घातक प्रदूषक आपको, आप देखें पंजाब में कैंसर ट्रेन चलने लगी है और उसका मुख्य सोर्स जो है वो कैंसर का सोर्स जो है वो ऐसे यूरेनियम युक्त पानी है। और सैलिनिटी की भी इशू है, जो समुद्र तल के क्षेत्र हैं या फिर पंजाब के भी रीजन हैं, ऐसे रीजन हैं। साथ ही साथ अभी भी आज आपने एक हमारी जो वक्ता थी उनमें देखा कि कैसे हम तेल का रिसाव करते हैं, पेट्रोकेमिकल स्टोरेज टैंक के रिसाव को देखें। ये अभी बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है बड़े बड़े शहरों में और गांव में भी है। और ये वेटलैंड्स में जहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं तेल को, तो आप देखेंगे कि ऐसे तेल रिसाव होकर के बहुत दूर तक सरफेस में फैल जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनका रिसाव ग्राउंड वाटर में सॉइल के माध्यम से होता रहता है। और ये एक प्रकार का घातक VOCs को, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन को भी रिलीज करता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा फार्मास्यूटिकल कंपाउंड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट और इमर्जिंग पोल्यूटेंट जो है, जिसे हम कह रहे हैं कि दवाई खाते हैं उसके बाद जो फेंक देते हैं, या जो खाते हैं बॉडी 10% ऑब्जर्व करती है, 90% हमारे मल मूत्र से जो निकल जाते हैं, वैसे पोल्यूशन भी एक महत्वपूर्ण कारक है आज के समय में मृदा के लिए और सरफेस वाटर के लिए और इवन ग्राउंड वाटर के लिए। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अभी वाराणसी में एक स्टडी से पाया गया है कि 400 मीटर के गहराई पर भी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड और इमर्जिंग कंटामिनेंट्स पाए गए हैं एक्यूफर्स में। सो इनसे हम अब कहीं भागे हुए नहीं हैं, ये सभी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो मुख्यतः अगर इफ यू सी द गैप्स, क्या गैप्स हैं, तो ज्यादातर आप देखेंगे कि ऐसे प्रदूषित क्षेत्रों का कोई बहुत ज्यादा उपाय, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, इनके रेमेडिएशन पे कोई ज्यादा प्रभाव या उपाय नहीं हुआ है। तो जो हमारे प्रश्न हैं आज, जो आप हमसे प्रश्न पूछेंगे या हमारे मनों में जो प्रश्न उठती है, वो ज्यादातर अनआंसर्ड है और बहुत छोटा प्रयास किया गया है जहां पे हम ऐसे प्रदूषकों के अकरेंस को, सोर्स को, उनकी फेट को, उनके ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स को और रेमेडिएशन को इन्वेस्टिगेट कर पाए सॉइल एंड ग्राउंड वाटर सिस्टम के लिए। इसी सिलसिले में चूंकि मेरी पढ़ाई IIT रुड़की से हाइड्रोलॉजी में हुई थी, जल विज्ञान में हुई थी, और मेरा पूरा फोकस जो रहा प्रदूषण निवारण पे रहा कि कैसे सॉइल एंड ग्राउंड वाटर सिस्टम से कंटामिनेशन को रिमूव किया जाए और कॉस्ट इफेक्टिवली। हमने एक अप्रोच अडॉप्ट किया है जिसमें एक कहें कि एक अम्ब्रेला अप्रोच अडॉप्ट किया है, जिसमें पहली स्टेप होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम कई डिसिप्लिन्स को इंटीग्रेट करके समझना चाहते हैं उस क्षेत्र को। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उस क्षेत्र को समझना चाहते हैं।
तो उसके लिए सबसे पहले हम साइट इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, ताकि हमें पूर्णतः पता चले कि हम एक्चुअली में साइट पे क्या प्रॉब्लम है, एकदम माइनर मैनेजमेंट, एकदम माइक्रो मैनेजमेंट हम कर सकें उस साइट का। फिर हम दूसरी जो सबसे प्राथमिक काम करते हैं वो है हाइड्रोजियोलॉजी को समझते हैं। जैसे हमें जाते हैं हम डॉक्टर के पास, हमारी सीटी स्कैन होती है, MRI होती है, उसी तरह हम भी भूमि और भूमिगत व्यवस्था को समझना चाहते हैं कि एक्चुअली उनकी सेटिंग्स क्या है, कहाँ बालू है, कहाँ क्ले है, कहाँ कितनी गहराई पर ग्राउंड वाटर है, कैसी उनकी व्यवस्था है, रॉक का क्या स्ट्रक्चर है, उसकी उसकी पूरी हाइड्रोजियोलॉजी को समझते हैं। फिर जाकर के हम जिस प्रदूषक को टारगेट करते हैं, जैसे अभी एक एग्जांपल मैं क्रोमियम का दूंगा इस वार्तालाप में, तो हम उस प्रदूषक का व्यवहार कैसा होगा पर्यावरण में या जमीन के अंदर भूमिगत क्षेत्रों में, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसे हम कहते हैं फेट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कंटामिनेंट्स। और फिर हम इन तीनों को, क्या समस्या है, कैसी जियोलॉजी है और कैसा व्यवहार है उस प्रदूषक का, इन तीनों के आधार पर हम तय करते हैं कि क्या रेमेडिएशन प्लान किया जा सके। और जब हम रेमिडिएशन कर लेते हैं मित्रों, यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि रेमिडिएशन बहुत ही टारगेट अप्रोच है, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी प्रदूषक को ठीक कर देना। जैसे हमारे केस में क्रोमियम हो सकता है, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, कोई भी ऐसा कंटामिनेंट्स हो सकता है। लेकिन पूरे क्षेत्र को अगर ठीक करना चाहते हैं तो हम रिस्टोरेशन का अप्रोच अपनाते हैं, जिस अप्रोच में हमारा ध्यान होता है कि कैसे हम प्रदूषक को ठीक करते समय ग्रीन हाउस गैस को भी ठीक करें, बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन करें, लाइवलीहुड भी जनरेट हो, और साथ में वहां की इकोनॉमी भी प्रोग्रेस करे, कंटामिनेटेड साइट रहने योग्य हो सके। और इस प्रक्रिया को हम लोग जनरली रिस्टोरेशन और इकोसिस्टम स्केल सिमुलेशन कहते हैं। अब जैसे ये अभी मैंने बोला कि कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट करते हैं साइट्स को, जिसमें साइट्स पे जाकर के सैंपल्स कलेक्ट करके साइट्स की कैरेक्टराइजेशन, रिस्क असेसमेंट और कई स्टेप्स हम उसमें परफॉर्म करते हैं। उसी तरह जियोलॉजिकल, हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडी करते हैं। अभी कुछ मित्र बोल रहे थे पोरोसिटी इंप्रूव हो जाती है, तो हम जानना चाहते हैं उस क्षेत्र में कैसे पोरोसिटी इंप्रूव हो जाती है, वाटर कैसे एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करती है, अगर करती है तो क्या अपने साथ उन प्रोडक्ट्स को भी लेकर के मूव करती है जो प्रोडक्ट हम एक जगह पे इंजेक्ट करते हैं या दूसरे जगह पे हम प्रयोग कर रहे होते हैं। किसी एक व्यक्ति ने अगर बायो एंजाइम या किसी भी प्रोडक्ट को यूज किया तो क्या तीसरा व्यक्ति भी उसका लाभ ले सकता है। ये सारी चीजें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं हाइड्रोजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। फिर हम उन टारगेट, जैसे मैंने बताया कि उस टारगेट पोल्यूटेंट का क्या व्यवहार होगा, कैसे वो फ्लो करेगा, कैसे इन्फिल्ट्रेट करेगा, कैसे डिस्पर्स करेगा क्षेत्र में, कैसे डिफ्यूज कर जाएगा एक जगह से दूसरे जगह, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। और फिर हम एक कहें कि डिजाइन करना चाहते हैं कि एक्चुअली उनका फेट कैसा है, उसका भाग्य उस पर्यावरण में कैसा है, चाहे वो एयर में हो, वाटर में हो, ग्राउंड वाटर सिस्टम में हो, और उसके आधार पर हम लोग रेमिडिएशन डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है अभी तक की चीजें, फिर मैं एक एग्जाम्पल केस स्टडी बताऊंगा कि जब आप किसी क्षेत्र को अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि एक साथ एक टेक्नोलॉजी वर्क नहीं कर सकती है, क्योंकि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स अलग हैं, पर्यावरण का कंडीशन अलग है। दिन में कहीं टेम्परेचर ज्यादा है, रात में कम है, कहीं पे बारिश बहुत ज्यादा है, कहीं बारिश कम है। तो एक ग्रुप ऑफ अप्रोच आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे विषैले क्षेत्र जहां पर माइक्रोब्स काम कर सकते हैं, जैसे आप ये वेस्ट डंप यार्ड देख सकते हैं, अगर उससे कोई पोल्यूटेंट जनरेट हो रहा हो और वो एकदम ही खतरनाक टॉक्सिक जोन बना दे पोल्यूटेंट का, जैसे कि गाजीपुर डंप साइट का भी बात हुई, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं प्रदूषित क्षेत्र, वहां पे आसपास के क्षेत्र एकदम ही प्रदूषण के तगड़े शिकार में होते हैं। तो वैसे क्षेत्र पे माइक्रोब्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। वैसे क्षेत्र जहाँ पे आयल का है या कम प्रदूषण वाला क्षेत्र है, कुछ जगह ऑक्सीजन का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सारे क्षेत्र में हम बैरियर यूज कर देते हैं जो बायोलॉजिकली सेंसिटिव होता है। फिर हम कुछ जगह क्षेत्र, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां हम सिर्फ वाटर टेबल फ्लैक्चुएट करके मिनिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं रेमिडिएशन को, पोल्यूटेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में कौन सा रेमिडिएशन प्रयोग करना चाहते हैं। अभी हम कहते हैं कि नहीं, मैं बायो एंजाइम ग्रुप से हूं और मैं हर जगह बायो एंजाइम का प्रयोग करूंगा, तो मेरा बात तय है कि मैं फेल कर जाऊंगा, मेरी टेक्नोलॉजी फेल कर जाएगी, मेरी अप्रोच फेल कर जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पे माइक्रोब सर्वाइव नहीं करेगा।
तो उसमें हमें केमिकल व्यवस्था पे जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर थोड़े बहुत ऑक्सीजन के सप्लाई से ही काम हो जाएगा, वहां खामोखा माइक्रोब्स या खामोखा बायो एंजाइम या बायो प्रोडक्ट्स का प्रयोग भी नहीं करना होगा। तो इस चीज की समझ माने उनकी विकसित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है रेमेडिएशन प्लानिंग के लिए। और जैसा कि रिस्टोरेशन के बारे में मैंने बताया कि इसमें दूसरे कई डिसिप्लिन्स को इंटीग्रेट करके हम रिकवरी देखते हैं कि ओवरऑल इकोसिस्टम कैसे रिकवर कर रहा। अभी मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सौभाग्य से मुझे एक साइट के बारे में बताने का मौका मिल रहा है। अभी तक जो भी बातें मैंने बोलाई बहुत थ्योरेटिकल थी, अब बता रहा हूँ जो मैंने इस अप्रोच को कैसे इम्प्लीमेंट किया है। अब दो गांव है, रनिया और खानचांदपुर, कानपुर देहात जिले में, कानपुर देहात जिला उत्तर प्रदेश में। जो गांव काफी फेमस है क्रोमियम डंप्स के लिए, क्रोमाइट और प्रोसेसिंग रेजिडुअल का डंप 1970 के दशक से 2019 तक वहां पे डंप किया गया। अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में लगभग 70-80 mg पर लीटर क्रोमियम ग्राउंड वाटर में है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। न सिर्फ सॉइल माने मिट्टी पर डंप है, इसलिए मिट्टी ही नहीं, एयर ही नहीं, ये ग्राउंड वाटर सिस्टम वहां के दूर दूर के इलाके तक फैला हुआ है और उसमें क्रोमियम की मात्रा जो है बहुत ज्यादा है। इवन कि वहां से एक NH2 गुजरती है, लेकिन NH2 के दूसरे साइड के गांवों में भी, जो खानचांदपुर जैसे गांव हैं, वैसे गांवों में भी क्रोमियम का प्लूम मूव कर रहा है, क्रोमियम उस दिशा में बह रही है। अब इस वर्क को हमने अंडरटेक किया है 2022 में। सो वी हैव ऑलरेडी अंडरटेकन दिस वर्क इन 2022। और आप देखेंगे ऑनरेबल कोर्ट में भी इस पे कई केसेस चल रहे हैं। कई बार डायरेक्शंस आया ऑनरेबल कोर्ट का कि कुछ डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए वहाँ रेमिडिएशन पर्सपेक्टिव से, बायो रेमिडिएशन का। और इसके लिए हमने वहाँ काम करना शुरू किया। जैसा कि मैंने अभी अप्रोचेज बताया, पहले हम उस साइट को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, फिर उसके हाइड्रोजियोलॉजी को इन्वेस्टिगेट किया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक जियोफिजिकल टेक्निक होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी टोमोग्राफी। उसके मदद से जैसे हम अपने बॉडी का CT स्कैन कराते हैं, वैसे ही इस जमीन के धरातल का CT स्कैन करके देखा कि कहाँ कितना पोल्यूटेंट है। और ये जो आप हरे कलर का देख रहे हैं, इसमें ये क्रोमियम का फ्लूम है जो किसी डंप से जनरेट होकर ग्राउंड वाटर में मूव कर रहा है। कहीं ऐसे पैचेज बने हुए हैं, कहीं एक नदी जैसा बह रही है। तो इसकी समझ पहले वहां पे विकसित किया, और फिर जाकर के हमने एक ऐसी मॉडल डेवलप किया जिससे हम आने वाले दिनों में क्या क्रोमियम की दशा होगी और क्रोमियम की अभी क्या सिचुएशंस हैं उसको आइडेंटिफाई किया। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे क्रोमियम रेड कलर में एरिया को कवर किए हुआ है। और ये छोटी एरिया नहीं है, ये बहुत बड़ी एरिया है जिसको क्रोमियम ने अपने चपेट में ले लिया है। फिर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव स्केल पे रेमिडिएशन प्लान किया कि क्या हम उसको, इस हाइड्रोजियोलॉजिकल नॉलेज को और साइट को इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो नॉलेज हमने गेन किया, जैसे अभी हमें 2.5 मीटर के XYZ डायरेक्शन में अगर आप पूछे तो हम बता सकते हैं क्रोमियम कितना कहाँ है। तो वैसे उस नॉलेज को कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे रेमिडिएशन के लिए और कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे रेमिडिएशन को, इसके लिए हमने साइट स्केल पे एक, वहां पे 2 बड़ी डंप साइट थी, छोटी वाली एक डंप साइट पे डेमोन्स्ट्रेटिव स्केल पे किया, और एक बड़े क्षेत्र में फाइटो रेमिडिएशन, अगेन द प्लांट प्रोडक्ट, तो फाइटो रेमिडिएशन के मदद से और कुछ सूक्ष्म जीवों के जो प्लांट के जड़ों में होते हैं, जैसे बैसिलस, आज भी एक बैसिलस का नाम आया आज सुबह के प्रेजेंटेशन में, उनके प्रयोग से हमने वहां पर इस चीज को ट्रीट करना शुरू किया। आप कुछ उसके लिए भी मैं कहूंगा फिर से कि हम लोगों ने उसके लिए बहुत सारे पहले लेबोरेटरी स्केल एक्सपेरिमेंट किए, सेम कंडीशंस को मिमिक करके देखे कि क्या वहां पे ये चीजें शुद्ध हो सकती है, क्या ये चीजें रिकवर की जा सकती है। और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जून 2024 में हमने डेमोन्स्ट्रेटिव स्केल का ये कार्यक्रम वहां पे शुरू किया था। और सितंबर और अक्टूबर, जब हम सितंबर तक में आप देखेंगे, जून 2024 में हमने उस लैंडस्केप को ट्रीट करना शुरू किया था। आप नीचे से आप लेफ्ट में देखेंगे जो पिक्चर है, वहाँ डंप क्रोम का वो ढेर पड़ा हुआ था, और उससे जो पानी निकल के आ रही थी नियॉन ग्रीन पानी, क्रोमियम युक्त पानी, और वही इन्फिल्ट्रेट होके ग्राउंड वाटर में जा रही थी। उस लैंड को प्रिपेयर करना शुरू किया, और फिर उस लैंड प्रिपरेशन में हाइड्रोजियोलॉजिकल मेंटेनेंस के बाद
हमने वहाँ पे प्लांटेशन करना शुरू किया और धीरे धीरे देखें अगस्त 2024 में वो प्लांट काफ़ी कुछ ग्रो हुआ और 2024 के सितंबर महीने में प्लांट की हाइट लगभग मेरी हाइट के बराबर हो गई थी और हमने क्लीन वाटर अचीव किया एक्वीफर से। जो प्रीवियसली आप देखें डंप का जो फोटो है डंप साइट का वो इस तरह था और आफ्टर इंटरवेंशन, जबकि ये 2-3 महीना पहले का फोटो है, 2 महीने पहले का फोटो है, आप देखें कि काफी कुछ बदलाव सा दिख रहा है। और ये आप देखेंगे कि ये बायो प्रोडक्ट दैट इज प्लांट, दैट इज इंजाइम, दैट इज माइक्रोब्स, इनके प्रयोग से हुआ। विटिवर ग्रास के अभी प्रोफेसर झा ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया, इतनी अच्छी ग्रास विटिवर, साइप्रस, साइनोडॉन, टाइफा, ये सब ऐसी ग्रासेज हैं। और विटिवर को खास करके हमें बोलना चाहिए, इस पे भी मैं डिस्कस करूंगा कि हमने टोटल 15 प्लॉट्स बनाए थे, बिग प्लॉट्स, और 15 प्लॉट्स में 6 डिफरेंट प्रकार के विटिवर ग्रास को प्रयोग किए। और आप जान के हैरान होंगे कि विटिवर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट है क्रोमियम को एब्जॉर्ब करने में, और आप उससे बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में कम समय में हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने 3 महीने में हमने वहां हार्वेस्ट भी किया क्रोमियम को, लगभग वो 120-25 mg पर केजी ड्राई मास में क्रोमियम एब्जॉर्ब हुआ। तो इस प्रकार का एक सक्सेस स्टोरी हमें वहां पे मिला। रनिया में कहीं भी जाएंगे आप, ऊपर में येलो कलर का नियॉन ग्रीन वाटर आप पाएंगे, मिल रहा है, लेकिन अगर आप हमारे साइट पे जाकर के पानी का सेवन करेंगे तो आपको एकदम क्लीन वाटर मिलेगा, जो कि स्टैंडर्ड को भी मीट कर लिया है। अब हम अपने तीसरे भाग में आते हैं अपने टॉप के, कि हम बायो एंजाइम को कहाँ प्लेस कर सकते हैं। उसी समय जब मैं रनिया में काम कर रहा था, मेरी बातचीत, लंबी बातचीत आर्ट ऑफ लिविंग जैसे पावन धरती पर प्रीति राव जी से हुई थी। उस समय हम लोग काफी कुछ उस पर डिस्कस किए थे और हम लोग इसको बहुत ही बड़े पैमाने पर इंट्रोड्यूस करने के भी प्लान में हैं। तो बायो एंजाइम को जैसे आप देख सकते हैं कि कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड वाटर में डायरेक्ट बायो एंजाइम को इंजेक्ट करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि बायो एंजाइम का पीएच हाई होता है, कंटामिनेटेड साइट्स पे पीएच ज्यादा होता है और एसिडिक नेचर का बायो एंजाइम। तो एकदम एसिडिक नेचर की सबस्टांस को एकदम एल्कलाइन में इंजेक्ट करना बहुत ही अटपटा मेल हो जाएगा। सो डायरेक्ट ग्राउंड वाटर में इंजेक्ट करना एक सही डिसीजन नहीं हो सकता है, अगेन उस साइट पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है, रॉ वेस्ट मटेरियल है, आप इस पिक्चर में आप देखें, ये रॉ वेस्ट मटेरियल है, ये इसे टीले जैसा बना हुआ वेस्ट मटेरियल है। ऐसे वेस्ट मटेरियल में यानी सोर्स के रेमिडिएशन में बायो एंजाइम बहुत कारगर हो सकता है, और इसके कई एग्जाम्पल हम लोगों ने आज सुबह से देखे हैं। एक एग्जाम्पल मैं क्रोमियम का भी यहाँ देना चाहूंगा कि हमने इसको अध्ययन करके पाया है कि जो सरफेस में, चूंकि सरफेस की ऊपरी सतह में क्रोमियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो वेस्ट मटेरियल होने के कारण रिलेटिवली ज्यादा होती है। तो ऐसे क्षेत्र में जहां पे सोर्स है आपका पोल्यूशन का, वैसे क्षेत्र में बायो एंजाइम्स की ट्रीटमेंट अच्छी हो सकती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बायो एंजाइम का प्रयोग हम वेस्ट मटेरियल साइट पे कर सकते हैं। और चूंकि बायो एंजाइम की सबसे अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी डिफ्यूज करने के लिए आपको एफोर्डेबल कॉस्ट पे रखना होगा। भारत में या दुनिया में रेमिडिएशन सबसे महंगा टेक्नोलॉजी माना जाता है। अगर आप किसी भी तालाब का रेमिडिएशन करने के लिए बोल दें तो 3-4 करोड़ से कम का टेंडर नहीं होगा जल निगम में या किसी भी नगर पंचायत में। तो अगर आप देखें इतना हाई कॉस्ट पे करके आप तालाब को ठीक करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी कम्युनिटी आपको अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल सिस्टम में भी विल पावर चाहिए और फाइनेंस भी उतना चाहिए। लेकिन बायो एंजाइम में ये ताकत है कि वो कॉस्ट को एफोर्डेबल बना सकती है। कम्युनिटी जो आसपास नदी तालाब के आसपास की कम्युनिटी है उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जब इसे टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल बना दिया जाएगा और कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अफोर्डेबल बना दिया जाएगा तो ये डिफ्यूज हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है। और आप देखें इसका प्रोडक्शन एक कम्युनिटी स्केल पर किया जा सकता है। कई सुबह से हम लोगों ने कई एग्जांपल्स देखे हैं कि हमारे कई रिस्पेक्टेड मेंबर ने प्रोड्यूस भी किया है और इंट्रोड्यूस किया है फील्ड स्केल पे। और दूसरी जो प्रयोग है इसका, जो कंटामिनेटेड साइट पे,
जो मैंने बोला पहले कि नॉन डिफ्यूज सोर्स है, जिस सोर्स का हमें पता नहीं है। तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल आज सुबह शुगर केन का हम लोगों ने देखा। मैं भी उसके बहुत ही पक्ष में हूं कि अगर आप खेतों में ऑर्गेनिक चूंकि मटेरियल को यूज कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, तो बायो एंजाइम आपको बहुत सपोर्ट करेगा। और इसी तरह फाइटो रेमिडिएशन के लिए प्लांट को ग्रो करना है, तो चूंकि शुरू में बहुत टॉक्सिक कंडीशन है, तो आप बायो एंजाइम के मदद से उस प्लांट को एक सुरक्षा कवच प्राप्त करा सकते हैं कि प्लांट खुद ग्रो कर जाए। और जब प्लांट ग्रो कर जाएगा तो उसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि उस प्रदूषक से लड़ पाएगा और वो अपनी अपनी व्यवस्था बना पाएगा। तो पोल्यूटेड साइट पे भी फाइटो रेमिडिएशन के समय में बायो एंजाइम का प्रयोग किया जा सकता है, उनके जड़ों को, और उनके जड़ों में एक विशेष प्रकार के बायो फिल्म के प्रयोग करके डेवलप करके बायोलॉजिकली और इकोलॉजिकली उसे अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। सो आई थिंक मैंने ज्यादा समय नहीं लिया हो। यहाँ से हम आगे कैसे मूव कर सकते हैं, बिकॉज हम सब नेशनल सेमिनार में हैं और हम सब का ध्येय ये है कि हम आगे अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने प्रोडक्ट को मूव करें। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने अभी बायो E3 पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है, अभी हाल के ही कैबिनेट में अप्रूव हुआ। और अब बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी पॉलिसीज से हमें ये ध्यान रखना है कि हम बायो, और खास करके बायो एंजाइम इसका पिलर है, मेन पिलर है कि बायो मैन्युफैक्चरिंग पे हम कैसे जाएं, एंटरप्रेन्योरशिप पे कैसे जाएं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स कम्युनिटी में हम कैसे डेवलप करें, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच को हम कैसे बढ़ावा दें। और मुझे लगता है इसमें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है BEA जैसी संस्था बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। दूसरी मैं पॉलिसी जिसको डिस्कस करूंगा, खास करके मैं तो इस क्षेत्र में कार्य करता हूं, इसलिए भी मुझे ज्यादा इस पे ध्यान रहता है, दैट इज रेमिडिएशन ऑफ कंटामिनेटेड साइट रूल 2024। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज भारत में रेमिडिएशन ऑफ कंटामिनेटेड साइट की एक रूल लेकर के आ रही है, जिसमें पूरी रेमिडिएशन का अप्रोच को समझाया गया है, अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और ये माना गया है कि आने वाले दिनों में, चूंकि भारत में प्रदूषित क्षेत्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, 1000-2000 तो बहुत पहले की डेटाबेस से था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटाबेस से, लेकिन अभी अगर आप देखें तो इसकी संख्या बढ़ जा रही है। कल ही मैंने न्यूज में सुना कि पूरी जो, या किसी एक क्षेत्र विशेष का एग्जाम्पल देना ठीक नहीं होगा, आप जहां भी जाएंगे आप प्रदूषण की ऐसी समस्याओं को देखेंगे। कानपुर, फतेहपुर और कानपुर देहात को पॉइजनस इमरजेंसी कंडीशन घोषित कर दिया गया है, क्योंकि वो पॉइजनस कंडीशन ऐसा हो चुका है सॉइल में और वहां पे एक्यूफर्स में। सो आप सभी लोग हमसे कोरिलेट कर पाएंगे कि भारत का कोई भी वैसा क्षेत्र नहीं है जहां पे प्रदूषण का प्रभाव आज नहीं है। चाहे बेंगलुरु जैसे विकसित क्षेत्र में ही देख लें, यूरेनियम की प्रदूषण बहुत ज्यादा है। जहां दिल्ली जैसे क्षेत्र में देख लें, कुछ दिन पहले ही दिल्ली जल बोर्ड ने फ्लोराइड की समस्या को बताया, जो कि फ्लोराइड हम कई दशकों से सुनते आ रहे हैं। बिहार के धरती पे ही देख लें, बिहार के कुछ क्षेत्रों में जो आर्सेनिक की समस्या से हम सब जूझ रहे हैं, पंजाब में जूझ रहे हैं, सेलेनियम, यूरेनियम जैसे समस्या से जूझ रहे हैं। सो आने वाले दिनों में इस ग्रुप का और इस क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं का, महिलाओं का, जो हमारे कम्युनिटी में है, उनको नर्चर करने का एक बहुत ही बढ़िया माध्यम बायो एंजाइम होने वाला है। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का क्षेत्र और इसके लिए कारगर है, क्योंकि मैं अभी रिसेंट मधुबनी और दरभंगा यात्रा में था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे वाटर हाइथिन जो है वो एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल, फीड स्टॉक हो सकता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और बायो एंजाइम, बायोचार जैसे प्रोडक्ट के लिए। तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभी जो पदाधिकारी हैं, विभागाध्यक्ष हैं, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप हम लोगों के सहयोग से, अगर, या हम लोग भी उसमें आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे, अगर आप वहां पे बायोचार प्रोडक्शन, बायो एंजाइम प्रोडक्शन या ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अगर आगे कदम बढ़ाएंगे, तो टेक्नोलॉजिकली हो या पर्सनली जिस स्केल पे भी हो, हम आगे करेंगे। हाल ही में दरभंगा में भी हम लोगों ने पॉन्ड रिस्टोरेशन के स्टडी को स्टार्ट कर दिया है, जो धरती इंटरनेशनल फाउंडेशन ने अभी बिहार कॉन्क्लेव में
दरभंगा के 2 पॉइंट को अंडरटेक किया है टू स्टडी अंडर CSR एक्टिविटी। तो आप और हम जब साथ मिलेंगे तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो सकेंगी, हम इनके बारीकियों को समझ पाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण है इस ज्ञान को अगले जनरेशन तक पहुंचा पाएंगे। इसी के साथ मैं अब यहाँ रुकना चाहूंगा। मेरा एक बेसिक टॉक है NCERT के वेबसाइट पे, जिसे सॉइल एंड ग्राउंड वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट के रूप में हमने रिकॉर्ड किया था और NCERT के YouTube पे अवेलेबल है। मेरे वेबसाइट पे भी ये सारी डिटेल्स हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति जो भी इच्छुक हो हमसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा ही तत्पर रहूंगा आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए और सहयोग के लिए। इसी के साथ धन्यवाद और विश्वविद्यालय और इस पूरे समूह को मेरा कंग्रेचुलेशंस, मेरी बधाई इस इतने बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। धन्यवाद। Thank you so much, Pankaj sir, for बहुत अच्छी sharing बात कही information. पंकज सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया हम लोगों को बायोएंजाइम्स के बारे में, सॉइल क्वालिटी, वाटर क्वालिटी एंड ग्राउंड वेस्ट रिलेटेड चीजों के बारे में। सो वी आर मूविंग टू आवर कोऑर्डिनेट सोनू रामशंकर सर। सर सोनू सर। Yes, please wait. Yeah, please wait. ओके Just a minute. I will join in. सर अभी तक हम लोग को our next speaker is Dr. Chandana ma'am. She's moving from one place to another and she's trying to coordinate the things. Just a minute. Seems to have sent us a file and I'm trying to connect those things together. इससे पहले हम आगे जाएं सर, गुप्ता सर ने इतना अच्छा हम लोग के साथ अपना प्रेजेंटेशन शेयर किया है कि मुझे मालूम नहीं है हमारे स्टूडेंट्स जो कि इसमें ज्वाइन किए हैं और दूसरे लोग जो ज्वाइन किए उनका क्या भाव है, लेकिन हमें तो लग रहा है कि कुछ आपकी बातों को सुन करके थोड़ा थोड़ा यहाँ पर अपनी हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर के शायद आप बोल रहे हैं प्रॉब्लम्स हमारे साथ हैं, सॉल्यूशंस आपके पास हैं, तो अकेले सॉल्यूशंस को लेकर के भी सॉल्यूशंस का कोई वैल्यू नहीं होगा। सो व्हेन इट विल बी वैल्यूएबल ओनली व्हेन द सॉल्यूशन मीट्स द प्रॉब्लम। ओके, धन्यवाद डॉक्टर सोनू जी। ये सौभाग्य की बात है, हम सब एक साथ काम करेंगे और अपने क्षेत्र को अपने Okay, myself Lux Kumar Thakur. We are moving to our next speaker, Dr. Vidyanath Jha. Is a distinguished academic researcher and the environmental advocate with an illustrious career spanning. He retired professor's botany and the principal of MLSM College, where he made a significant contribution to the fields of botany and the environment science, particularly in the relations to economic development in Bihar. Dr. Jha has successfully undertaken numerous research projects founded by the organizations such as the UGC, INS, and the DST. His groundbreaking work on Makhana has been widely recognized for the impact on Bihar economic development. She has received several associates, including Professor P. Sharma Medal for the Society of Ethnobotanists, NBRI Lucknow, World Environment and the Leadership Award at the 6th International Conference
on the ecology and the environmental at the University of Allahabad, Prayagraj in Feb 2020. May I audible, sir? Yes, you are audible. Okay, sir. Visiting fellowships associations in INSSA, UGC, and the CSIR. Dr. Jha has also provided contributions at the academic and the public discourse, having over 150 research papers in 200 popular athletics. His topic for today season: role of bioenzymes in tackling water pollution in the Mithila region, where he will share his inhealth into sustainable solutions for the water pollution and environment challenge in the region. Sir, may I audible? Yes, you are audible. Okay, sir. We are welcoming, sir, Dr. Vidya Najha. Okay, thank you. Okay, sir. You please start. Yes. At the outset, I am very thankful to the society that is organizing this national webinar on bioenzymes, innovations and applications for a sustainable future. I am very thankful to the head of the University Department of Chemistry, Professor Prem Mohan Mishra, who has always been innovative in his approach towards academics, towards the development of academics, as well as towards the development of chemistry as a discipline. The next man to whom I must owe my gratitude is Engineer Braj Kishore Jha, who has been instrumental in organizing this webinar at Darbhanga. He was just pursuing the organization of this webinar for the last several years, but today it has taken place. It is taking place. So I am very thankful to him, and also thankful to Dr. Sonu Ramshankar ji, who is coordinating the program right now. Next one. Yes, topic of my presentation is the role of bioenzyme in tackling water pollution in Mithila region. And I think it would cover some other aspects of development with the help of these bioenzymes as well. Yes, so I'm starting this. This photograph is from internet. It has been taken. Next one. Enzymes produced under anaerobic conditions from fermentation of organic waste material such as fruit, vegetable waste, along with brown sugar and water in a fixed proportion are called as bioenzymes or waste enzyme or garbage enzymes. Now this is the definition. Am I audible? Clear? Yes, sir. Am I audible and Yes, clear? sir. Yes. Bioenzymes or waste enzymes or garbage enzymes are different than any other enzymes which are produced by a living cell or microorganism such as fruit enzymes. Bioenzyme can be utilized for natural household cleaning, as natural insecticides, replacement of chemical detergent, as body care, as natural antiseptic for houses, as organic fertilizer, removing odor and toxic air released from smoking, car exhaust, chemical residues from household products, etc. And it also prevents blockage of drain pipes, helps in purifying the water bodies when flows them. It also acts as a repellent for mosquitoes, flies, rats, cockroaches, and other nuisance-creating organisms. Effective treatment of wastewater can be done by using bioenzymes. So these are the literature already available. Next one. More than 70% of the freshwater bodies carrying polluted water and groundwater level have been reduced to zero at certain places. The water which gets contaminated or polluted loses its usefulness and becomes a waste. Such water is generally termed as wastewater that contains a wide range of elements that could impact environmental and public health issues negatively. To minimize potential harmful impacts, it has been highly recommended that wastewater must be treated prior to discharge or reuse
Various treatment and purification technologies have been developed to reclaim the usefulness of wastewater. These treatment technologies are based on three basic processes: physical, chemical, and biological. Bioenzymes are being increasingly used in India to address water pollution challenges, offering an eco-friendly and sustainable approach. They are applied in wastewater treatment, solid waste management, and agricultural practices. For example, bioenzymes like Pusa decomposer help decompose agricultural stubble without burning, thus preventing pollution and improving soil health. These enzymes also support water conservation by breaking down organic waste in water bodies and enhancing biodegradation efficiency. अब हम इसके बाद आते हैं जहाँ ये प्रोग्राम जहाँ से किया जा रहा है, that region also has its high stakes in disposal of the parali, that is paddy waste, paddy straw. अब आप देखिए, ये अभी अखबारों में आया है, कैप्सूल है या ब्रह्मास्त्र, पराली पर डालते ही बना देता है जैविक खाद, फसल की भी होगी बम्पर पैदावार। ये अखबारों में ये बात आई है। धान और गन्ना की फसल काटने के बाद गेहूं की बुवाई के लिए किसान बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। इस कारण वे पराली फसलों के अवशेष को जलाकर खेत को साफ कर लेते हैं। यह तरीका भूमि के लिए बेहद हानिकारक होता है। पराली जलाने से मृदा की ऊपरी परत नष्ट हो जाती है और सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, जिससे ये अभी चिंता का विषय है। आप देखिए, ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आप सब जगह देखते हैं कि आपको जाड़े में खास करके किस तरह से जाड़ा शुरू होने से पहले किस तरह से पराली जलाई जाती है और धान की फसल काटने के बाद खेत को साफ करने के लिए बहुत कम समय मिलता है और दिहाड़ी मजदूर खास करके उनको इस स्थिति से कुछ लाभ ही होता है, पर्यावरण को जो भी हानि होती हो, क्योंकि वो मनमानी ढंग से वो अपना वेजेज वसूल करते हैं। लेकिन बड़े किसान तो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, छोटे किसानों के सामने समस्या है और वो कानून हाथ में लेकर भी पराली जलाते हैं और उसका जो कंसिक्वेंस है, आप देखते हैं कि पूरे एनसीआर रीजन को इसका फल भोगना पड़ता है। तो इसकी समस्या के समाधान के लिए पूसा डिकम्पोजर करके आपको IRI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसका जवाब निकाला है और यही बायोएंजाइम प्रोसेस से जो पूसा डिकम्पोजर तैयार किया गया है उसका लार्ज स्केल यूज हो रहा है। अब तो एक ये भी है कि इसके ब्रिकेट्स बना करके रखे जाए, क्योंकि ये इतना सारा इतना इनॉर्मस अमाउंट में जो बायोमास फाइटोमास जनरेट होता है, उसका यदि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना हो तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक है। और यहाँ पर जो आपकी बायोएंजाइम टेक्नोलॉजी है वो हमारे काम आ रही है और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में समस्या का पूरी तरह से फुल प्रूफ हल ढूंढ लिया जाएगा। हम उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट। In some cases, municipal corporations have tried bioenzyme formulations such as drain enzyme for cleaning polluted rivers and drains. Though the implementation is still in pilot stages, these initiatives aim to improve water quality, control pollution, and reduce dependence on chemical treatments. However, large-scale adoption faces challenges due to infrastructure gaps and limited public attachment. Novel bioenzyme varieties. There is a wide range of bioenzymes, each designed for specific applications. These include amylases, proteases, lipases, cellulases, and many others. Bioenzymes are derived from various sources, including microorganisms like bacteria and fungi, as well as plant and animal tissues. They serve diverse functions in industries, from breaking down organic matter to facilitating food digestion. Bioenzymes are abundant in the world of plants, animals, and microorganisms. I have already said fruits like papayas and pineapples contain enzymes such as papain and bromelain, which aid in digestion. Yogurt and other fermented dairy products provide lactase and other enzymes that assist in breaking down lactose. Additionally, green leafy vegetables, honey, and bee pollen
contain various enzymes essential for different biological functions. Microbes like bacteria and fungi are also prolific producers of enzymes used in various industrial applications. These natural sources of bioenzymes not only contribute to health and digestion, but are integral to a range of biological and industrial processes. अब मैं अपना जो हमारा अपना विषय है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ उसकी बात करता हूँ. We are here in Darbhanga, that is considered to be the city of tanks and ponds. अभी हाल तक कुछ वर्षों तक यहाँ 200 से ऊपर टैंक थे, पॉन्ड्स थे और इस शहर में हराही, दिग्घी, गंगा सागर, मिर्जा खां तालाब, सूखी दिग्घी कई सारे हैं और ये जो म्यूनिसिपैलिटी का नक्शा है वो इस बात को दिखाता है. कभी यहाँ पर 1000 से 1100-1200 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल हुआ करता था, लेकिन अभी पिछले करीब एक दशक से इसका जो अमाउंट है रेनफॉल का अमाउंट दैट हैज बीन ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग और उसके क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं वो हम आपको दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, ये आप देखिए, ये हराही पोखरा है. आप देखिए ये राजा हरि सिंह देव कर्नाटक डायनेस्टी के राजा थे, उनके नाम पर ये है. आज इसकी क्या हालत है ये आप इसको देख सकते हैं. अभी छठ और दाहिनी तरफ ये छठ का फोटोग्राफ है, किस तरह से इसी पोखरे में लोग छठ कर रहे हैं. और आप ये देखिए किस तरह से ये स्कम है, ये जो अलगल स्कम लेयर है, इसको हटाने के लिए प्रशासन को क्या एंड ड्यूरिंग छठ फेस्टिवल. अब ये कितनी बड़ी समस्या है. जिस पोखरे में कभी लोग स्नान करते थे वहां तो अब स्नान क्या, ये मतलब जानवरों के भी किसी तरह के उपयोग के कारण यह पोखरा नहीं रह गया है. लेकिन चूंकि बिहार के जिस इलाके में हम हैं वहां पर छठ एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और इसमें हजारों लोग छठ करते हैं, तो सरकार के पास भी एक बड़ी समझिए कि बड़ा दायित्व होता है, जवाबदेही होती है कि कैसे साफ करके उपलब्ध कराया जाए लोगों को छठ पर्व करने के लिए. नेक्स्ट, अब आप ये देखिए, इस बार तब प्रशासन ने शक्कर मशीन लगा करके अलगल स्कम को हटवाया. ये पहली बार ऐसा हुआ है. पहले होता था कि खास करके गर्मी के कुछ दिनों तक ये स्कम बनता था, उससे सरांध आती थी, दूषित हवा निकलती थी, लोग उसको बर्दाश्त कर लेते थे. लेकिन इस बार मैं समझता हूँ कि करीब 6 महीने से ऊपर से ये स्थिति लगातार बनती चली जा रही है. आप उधर से गुजर नहीं सकते बिना नाक पर रुमाल दिए हुए. तो ये स्थिति हो गई है और इसके रिट्रीवल का कोई उपाय सामने नजर नहीं आ रहा, कोई उपाय नहीं. जब तक रेस्टोर नहीं होता है, रेनफॉल का जो अमाउंट है रेस्टोर नहीं होता है, तब तक हम इसको, इस हराही पोखरे को या और भी जितने पोखरे हैं उनको अपनी पुरानी स्थिति में लाने में हम कहीं से भी दूर तक इसकी संभावना नहीं देखते हैं. तो ये ग्रेजुअल जो डिग्रेडेशन है, ये बहुत ही चिंता की बात है. तो इसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता है? बायोएंजाइम के माध्यम से फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए, लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए जहाँ कहीं भी हमारी कल्पना जा सकती है वहाँ लोग काम कर रहे हैं. लेकिन दरभंगा जैसी जगह में जहाँ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वहाँ अभी समस्या, यहाँ के जितने टैंक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उनको इस तरह से यूजलेस और न्यूसेंस प्रोड्यूसर होना बहुत बड़ी चिंता की बात है. तो यदि हम बायोएंजाइम की मदद से इस प्रॉब्लम को कुछ हम सॉल्व कर सके, अभी सरकार इतना पैसा लगा करके इसको साफ करवाती है, क्या हम इकोनॉमिकली अफोर्डेबल मीन्स से इनकी सफाई कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है. नेक्स्ट वन, अब ये देखिए, हराही की सफाई के लिए नगर निगम ने शुरू किया अभियान. नेक्स्ट, अब आप ये देखिए किस तरह से ये पूरी कहानी इसकी है. नेक्स्ट वन, तो इसीलिए इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी ऑफ यूजिंग बायोएंजाइम्स, खास करके कॉस्ट कंपैरिजन. बायोएंजाइम्स may have higher initial costs due to production or procurement. Manual methods generally require continuous labor, making them costlier in the long term. Bioenzymes often work faster and target algae more effectively,
reducing recurring efforts and costs. Manual methods may require repeated interventions, increasing operational costs. Scalability. Bioenzymes are scalable with minimal increase in costs for large areas. Manual methods scale poorly due to higher labor requirements. Bioenzymes avoid harmful chemical residues and are eco-friendly. Manual methods might not address root causes like nutrient load. While bioenzymes might seem costlier upfront, their efficiency, sustainability, and reduced long-term labor requirements often make them economically advantageous over time. तो इस तरह से हम देख नेक्स्ट इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे ये जो हमारी समस्या दिनानुदिन गंभीर होती जा रही है ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन दरभंगा सिटी और दूसरे सिटीज नॉर्थ बिहार के मिथिला के जितने भी दूसरे सिटीज हैं सब जगह ये प्रॉब्लम है। पानी की मात्रा दिनानुदिन कम होती जा रही है, ये खास करके रेनफॉल में कमी के कारण, और जो हमारा रिवर फेड जो सिस्टम है वो भी दिनानुदिन कमजोर होता जा रहा है। बोथ रेनफॉल फेड सिस्टम, रेन फेड सिस्टम एज वेल एज रिवर फेड सिस्टम दे आर कमिंग अंडर स्ट्रेन, और ये बहुत बड़ी समस्या है। कुछ और भी जो प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं जिनकी ओर मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान आकृष्ट कराया जाए। यहाँ पर एक ग्रास है जिसको भेटीभर बोलते हैं, कतरा झाड़ बोलते हैं। ये इनॉर्मसली नेचुरली यहाँ के फ्लड प्लेन्स में अपने आप ग्रो करता है। तो इसका हम बेटर यूज कैसे कर सकें, इसके माध्यम से हम अपने लैंड को कैसे स्टेबलाइज कर सकें। हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा नदियों का जाल है और नदियों के पानी के माध्यम से कोसी, बागमती, कमला आदि नदियों में बालू का जो अमाउंट है, सैंड का अमाउंट है, वो बढ़ता जा रहा है। उसको प्रॉपरली एमेलियोरेट करके हम उसकी गुणवत्ता, सॉइल की जो गुणवत्ता है उसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, उसका एक उदाहरण है भेटीभर ग्रास, जिसका कि हम बायोएंजाइम के माध्यम से किस प्रकार से बेटर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, उसकी ओर हम इशारा करना चाहते हैं। ये पेपर है फंक्शनल लिंक्स बिटवीन बायोमास प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ भेटीभर ग्रास इन 3 ऑस्ट्रेलियन सॉइल। अभी तो ये बाहर हो रहा है विदेशों में, लेकिन जरूरत है कि हम अपने यहाँ भी इसको लाए। नेक्स्ट वन, सॉइल एमेलियोरेशन थ्रू भेटीभर प्लांटेशन। जिस भेटीभर पर ये पेपर हमने आपको दिखाया, अब आप देखिए ये लेफ्ट अपर साइड में किस तरह से यहाँ नदियों का जाल है, छोटी बड़ी नदियों का। फिर आप बीच में देखिए किस तरह से प्लांटेशन किया जा रहा है अलोंग रोड साइड, और दाहिनी तरफ आप देखिए किस तरह से डेंस प्लांटेशन हैज टर्न्ड इनटू ए ग्रीनरी। और नीचे भी आप देख सकते हैं, नीचे भी किस तरह से इसकी जो जड़ें हैं बहुत नीचे तक जाती हैं, और स्लोप स्टेबलाइजेशन में इनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो यहाँ भी हमारी नजर जानी चाहिए। नेक्स्ट वन, अब ये देखिए सेडिमेंट मैनेजमेंट इन कोसी रिवर। हमारे कभी इसको सौरव ऑफ बिहार कहा जाता था। आज भी जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सैंड है दैट इज कैरीड बाय द करंट, और ये इसका जो सैंड है आप देख रहे हैं किस तरह से उसको निकाला जा रहा है। तो उसका एक बेटर प्रैग्मेटिक यूज यही है कि हम उसमें ऑर्गेनिक बायोमास, फाइटोमास बढ़ा करके उसको भी हम यूजेबल बनाए। ये बहुत ही आवश्यक है, उसकी तरफ हम देखें, उस तरफ हम अपनी नजर ले जाए। नेक्स्ट वन, पॉसिबल सोर्सेज ऑफ बायोएंजाइम्स इन मिथिला एरिया। नेक्स्ट वन, ये देखिए अभी आप बात कर रहे थे कि तरह तरह के फील्ड से, खास करके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस, फ्रूट्स एक्सेट्रा आप बनाते हैं बायोएंजाइम। तो यहाँ आप देखिए किस तरह से बाईं ओर में आप ये मखाना का फ्रूट है, अब इसमें आपको इसका फ्रूट पील वगैरह निकाल करके, इससे भी एक बहुत बड़ी संभावना है। नेचुरल जो इसका प्रोसेस है उसमें ये अपने आप डिकम्पोज होता है, बिकॉज नथिंग एक्सेप्ट सीड इज टेकन आउट ऑफ दिस सिस्टम। तो इसकी काफी यहाँ संभावना है। नीचे आप देखिए लीची का भी इलाका है। वी हैव नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना एट दरभंगा एंड NRC फॉर लीची एट मुजफ्फरपुर। फिर इधर देखिए आप केला है, खास करके देशी ये चिड़िया वेराइटी ऑफ केला है, काफी होता है। हाजीपुर का जो हमारा इलाका है गंगा के इस पार, तो वहाँ पर फिर उधर सिंगापुरी केले का भी इलाका है। बिहार एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है केले का, तो उसके फ्रूट कवर्स, फ्रूट पील एज वेल एज अदर पार्ट्स
उससे हम जहाँ तक कर सकें। फिर देशी आम का आप देख रहे हैं, इसका भी छिलका जो है हम खा करके यूं ही फेंकते हैं, तो यहाँ भी काफी हमें संभावना दिखती है। नेक्स्ट वन। अब ये देखिए इधर वेटिवर फाइटोमास जो मैंने आपको दिखाया था, आप देखिए इस बार मैंने इसका फोटोग्राफ लिया, कितना इनॉर्मस फाइटोमास जनरेट होता है और भूमि की जो उर्वरता है उसको रिस्टोर करने में इसकी बहुत भारी क्षमता है। यहाँ देखिए प्लांट रिमेन्स ऑफ मखाना, वहाँ भी चूंकि इसका ये निकाल करके ये पानी में ही मिल जाता है, तो वहाँ भी हम देख सकते हैं कि हम क्या इंटरवेन कर सकते हैं, हमारा इंटरवेंशन क्या हो सकता है। नेक्स्ट ये देखिए, हियर वी हैव ए फोटोग्राफ ऑफ ए लेडी सेलिंग ट्रापा फ्रूट्स, और ट्रापा में आप देखिए इसका जो भीतर वाला गूदा है, कर्नेल है, उसका यूज करते हैं, और इसका जो ये फ्रूट कवर है, ये देखिए किस तरह से इसका यूं ही यूज होता है, जला दिया जाता है। तो यहाँ भी हम बायो एंजाइम इंटरवेंशन कर सकते हैं, काफी संभावना है। वैसे भी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है, और कई सारे पेपर्स हैं ट्रापा के जो फ्रूट पील हैं, उसको किस तरह से उसका हम बेटर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन। अब ये देखिए, इसके साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, किस तरह से वेटिवर ग्रास जो है वो मैं समझता हूँ कि ये आदि पर्व है। ये हजारों सालों से इस इलाके में लोग इसकी पूजा करते आ रहे हैं, गाय के गोबर और मिट्टी के ढेले के साथ, और हमें इससे ये लेने की जरूरत है, सीख लेने की जरूरत है किस प्रकार से इन्वायरमेंटल अपकीप का, आपको सॉइल कंजर्वेशन का इससे बढ़िया उदाहरण मैं समझता हूँ कि नहीं है। ये हम उदाहरण अक्सर बाहर से लेते हैं कि कैसे हम अपनी मिट्टी को पुनर्जीवित करें, रिजुवेनेट करें, बट हियर वी हैव a fine example of the use of vetiver for restoring the degraded lands. Next one. तो इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, किस तरह से बायो एंजाइम की मदद से। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि अभी नेचुरल फार्मिंग की काफी चर्चा हो रही है। नेचुरल है कि जिस तरह से हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करके अपनी जमीन की जो गुणवत्ता है उसको खोते चले जा रहे हैं, तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ है कि हमारा राइजिंग पॉपुलेशन है, उसको फीड करने के लिए भी हमें खाद्य उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। तो दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित कर हम आगे बढ़े, यह समय की मांग है। हमें श्रीलंका से सबक लेनी होगी कि श्रीलंका में किस तरह से एक लार्ज अपराइज हुआ लोगों का वहाँ की सरकार के खिलाफ, और सरकार गिर गई। उसके पीछे एक कारण ये भी था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पर वहाँ बहुत जोर दिया जा रहा था। तो बिना प्रॉपर तैयारी के हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। बायो एंजाइम इंडस्ट्री जो है, इसमें हमें एक संभावना दिखती है कि धीरे धीरे हम अपना जो हमारा इनॉर्मस पॉपुलेशन है उसको भी फीड करना है, लैंड डिग्रेडेशन को हटाना है, लैंड क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है। तो हम धीरे धीरे वी हैव a big scientific power and we have the capacity to ameliorate our situation. तो दोनों के बीच सामंजस्य रख के हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार मैं पुनः प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा जी को, इंजीनियर दलकिशोर झा जी को और सोनू राम शंकर जी को इस दरभंगा जैसी छोटी जगह में इस तरह का शानदार कार्यक्रम एकेडमिक सेमिनार आयोजित करने के लिए बधाई देता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, Vidyanath sir, for the sharing this information. आपने बहुत कुछ हमें से बताया कि कैसे वर्सेटाइल यूजेस ऑफ बायो एंजाइम किया जाता है। वेस्टेज ऑफ वाटर जो हमारे दरभंगा में छोटे से शहर में इतने सारे पाउंड्स होते थे, कैसे दरभंगा को ये नाम मिला टैंक्स एंड वाटर का, एक सिटी ऑफ अ टैंक्स एंड ऑफ वाटर। और इनमें ये हराई पोखर बहुत ज्यादा गंदा रहता है, ये स्मेल सच में बहुत इनहेल्थ हो गया है। So thank you so much, sir. Good afternoon, everyone. I am Tej Ragat. Thank you, Sonu Ram Shankar sir, our coordinator of this national webinar. Thank you for the presence of the speakers, pattern, and participants. Now we are moving forward to our next speaker, Dr. Hariranayan Tiwari. Co-founder of Falcon Consultants, is a distinguished leader in the field of water resources engineering, specializing in river engineering, flood and drought management, and project planning, an alumnus of BIT Sindri and IIT Roorkee. Dr. Tiwari is a gold medalist with 13 years of experience in research and consultancy.
His expertise has earned him in the role of technical consultant to the Ministry of Jal Shakti, Government of India. Dr. Tiwari has impressive portfolio, having executed 93 consultancy projects, published over 50 research papers, and delivered numerous invited lectures. His pioneer initiatives include SOCH program, which promotes water conservation awareness among children, Floodcom Practicum program, fostering industry-ready skills for young professionals, launching the magazine Pani Teri Kahani, dedicated to water-related issues, providing pre-professional training to over 1,000 students through CPER. His commitment to corporate social responsibility is evident through initiatives such as flood analysis for vulnerable communities in Bihar. Dr. Tiwari has a strong advocate for strengthening the academic industry research nexus, working to bridge gaps between research and consultancy practices in India. Today, Dr. Tiwari will present the topic Waste to Wealth, applications of bioenzyme for industrial products, sharing insights on transforming waste into valuable industry products through innovative bioenzyme applications. Let us warmly welcome Dr. Harinarayan Tiwari. Over to you, sir. Thank you very much, Tejas, and thank you, Sonaramji, for inviting me for this particular seminar. Actually, I would like to say about myself that my experience in this area is bit less. But since we as an entrepreneur always taking a challenge, that means what kind of the different challenges or possibilities, so that our with our limited knowledge and with limited knowledge of technical and economics, so I'm trying to present that how these bioenzymes or the uses of bioenzymes to make that a kind of different kind of business possibilities is there. Since I'm working through my company from last 10 years after my completion of research from IIT Roorkee. So I would like to share, let me look, yes. I think screen is visible. So my topic is very much straightforward because all of you are very learned person, and you know about the bioenzymes and other things. So I would briefly discuss that what kind of industrial use of that and what kind of market it is in future. That means the market potential. And there are some assumptions also when I have estimated those market specifically for the bioenzymes in India. So the first thing when comes into the mind, there are some waste products, organic waste, or these kind of things. So first we have to thought the process about that is this is a waste or resource, because when we are working for any projects or we are thinking about any project, so we have to first think that what we are trying to create, is it really a waste or we can use it as a resource? Because you all know that these kind of materials can be used to produce some kind of bioenzymes to use plants and some kind of you can say agriculture purpose or some type of plant beneficiaries. So this kind of suppose there are some waste and we are with the anaerobic digesters, and we can utilize it for a as a fertilizer, because we are using also a chemical fertilizer a lot. So that can be convertible, and in the society level, or in fact at the household level, the people are also trying to use as the awareness is coming, because chemicals are also not good for that means of a future, or you can say it's a bad
items for water as well as soil. So somehow that means what we are thinking as a waste can be utilized for a two purpose. Because the first purpose, what we are trying to say that we are utilizing this waste to create a kind of products which can be used for a good purpose. And again, the second thing is that what chemical we are trying to reduce via that is also useful. So there are, you can say, a two-way benefit when we are using or we are trying to convince the people to use these kind of items for their small purposes. So the practical applications, because I have just collected from some research paper and some other items, there are municipal wastewater treatment and other wastewater what earlier discussed by other speaker also. So apart from the municipal industrial wastewater treatment, also these kind of bioenzymes can be used. The things which is coming into the mind that whether it is a that means at the commercial level, is it okay or not? Because there is two items. Suppose if any product is having a use, but when we are going to use that particular item, the process to make those kind of suppose bioenzymes, is it self-sustainable or is there any other process involved? So we have to understood, we have to make it an brainstorming. But there is a application the people are using in a different countries. Even in India the applications are there, but it's not so much of public friendly, because in research lots of things are going on, people are trying to say that. And in at the village level, sometimes the traditional knowledge is also like in okay. Sometimes the traditional knowledge is also very helpful, that how we can make it like bioenzymes for some good purposes. Like ma'am is mentioning about the septic tank maintenance. So that kind of items where we can utilize the waste for one particular cycle, where she is also telling about the life cycle assessment. So for any product we have to think about that. So in a water purification, what we are thinking about the benefits. So the first thing, like it is a environmental friendly, which we are trying to say, but we have to understand all the life cycle. Maybe when its life cycle ends, what would be the residuals, if there is any residuals. Regarding efficiency, someone is asking about the efficiency when we are using it for a biogas production. As ma'am has already mentioned that obviously the efficiency will increase, so that the production will also increase. But we have to look into that how much, because we are saying that efficiency will increase, but quantification is necessary when we are coming into the commercialization. And the last items enzymes are like a target specific contaminant. Suppose some contaminants are not easily reducible by the chemical process and other things, where we can think about the bioenzymes process. So that we must have to give the thought over that. And what the challenges and consideration over the bioenzymes, like it's a stability and cost of production, because as I mentioned that if some products are there, ideas are there, and maybe it is very environmental friendly, but if we are going to the production of that or utilization of that particular bioenzyme, so we have to think about the cost of production, how it is getting produced in a cheaper way, so that the commercial or any industry which is trying, like detergent industry having a much more use of bioenzymes. Some meat industries are also is having a lots of uses of bioenzymes. So we have to think of products that what we are trying to make through the research and other things, how we can reduce the cost of production. So these are some literatures what I have taken from the research domain, that what kind of enzymes and what is like in a different use, like a dairy waste water treatment, hydrolysis and other purpose. So these are small details what I have given. I will just give this presentation. Also, you are also aware about that what kind of enzymes of the different type of solid waste management.
And regarding solid waste, because it is a worthwhile to note that the solid waste is getting more challengeable in future when we are getting towards the urbanization. And there are few fixed methods to manage these solids. And these are also a kind of, suppose if we are doing a landfillings, but in the landfillings also, if you are aware about the Delhi, so there are lots of landfill sites are there due to the solid waste. Now there is a two kind of wastage is there. One is a land waste, and the other is the environment, like air and other. The peoples are now facing issues after 20-30 years of the urbanization of Delhi. So that kind of problem will be vulnerable because our lifestyle is changing. So the first and fundamental thing is that to reduce the solid waste, because that is one of the things which we have to do. But suppose if our that means process of reduction, because our population is also increasing. So if it is not there, so we have to think about that. And there are multiple research, in fact, in some commercial ground also, where the bioenzymes is used for the solid waste management. So that is the area where I have also done some of the market analysis that I will show also here. So what kind of that? Because in a solid waste, you can just look at how that means like a different kind of industrial, clinical, food processing. Now there is a e-waste also, because we are using lots of computers, pen drives. Every year this is going to be like waste. So it's that kind of in that kind of waste, whether the bioenzymes uses are there. And if it is there, suppose if bioenzymes production or bioenzyme products can able to capture less than 10% of the market what it is already having, because the solid waste management is a practical problem, and there is a requirement of solution over there. So when we are just trying to do that, how the enzymes and all those items we can convert the different type of like agricultural food waste or plastic waste to the different products to further utilization. That means we are enhancing the total life cycle of particular product. So that is very much useful. So I just try to get like in fact, in a plant, there are certain type of bioenzymes like in papaya, pineapples, which is containing some kind of bioenzymes, which is useful for the different industry like food industry or paper and pulp industry, which could be utilized. But thing is, we have to summarize all those things in a very simple manner, because what I felt, because when I came from a research and I just entered into the industry, so there are very complication, because research are going on. There is no doubt about that in any field. The research is on a very high scales that is happening. But what industry is looking is a very simple documents which is having a research input as well as the other inputs which they can understand simply, so that the utilization is easy. Because if the complex problems is coming as a complex to the people who don't understand, that means who is not having any kind of idea that what kind of research is going on. So that's why initially in my introduction is also mentioned about the academic, industry and research. There is a term which generally we are using as a air. So that collaboration is very much needed, and in that collaboration we can succeed in a more faster way. So there are in industrial waste water treatment, because you already know all those things, like for a degradation of organic pollutants, to reduce the POD, the reduce of toxic organic elements. So there are different of bioenzymes which can be used for the different kind of industrial wastewater treatment. And to enhance the biological treatment process, if the process is slow, that means due to the slow process, we are not getting a desired result in a desired time period. So to improve that, the bioenzymes can be used to control the order to the sludge reductions. So that kind of you can say works can be done. And as I earlier mentioned, that there are 4 5 things like cost effective, sustainable. But in sustainability, actually what we are trying to do that, we are trying to forget the actual product sustainability first.
Because sustainability, if we are talking only about that, okay, environmental will get benefited, but is that environmental, what would be the environmental cost? Because some people may have an argument that no, environment is having, that means there is no quantification. But yeah, all of we are aware about that this is the materialistic world. So we have to logically think about that. That means what could be our environmental cost, and if that we will, that means we are able to present to the industry. So industry is also taking up in that direction, because as you can see that in the last 20 years there are lots of industrial development in the field of chemical engineering, because that chemical peoples, they are able to introduce their products in a different manner. So as a bioenzymes, because bioenzymes is also kind of products which we are trying to claim it as a environmental friendly, so we have to come with the foolproof proposals, including the technical items, including the commercial items, so that the industry will easily take it up. Okay, this is the clear cut future of that, so they can take it up, because there is no other way. That means only from a one background or research, it can be taken by the industry. So I'm just coming into the some commercial aspects which I have taken from a different resources. So you can, there is a India enzyme market, which is already, it is established market in India. And I'm just trying to focus on some my analysis, because these are the already available items. In India enzyme market, you can see that there are market characteristics which I would like to bring a small notice over there. You can just look into that, why when we are doing the industry competition. So there are three items where that the degree of innovation is good, because it's a survey of whole world. It's not only like India, and in India they are just trying to give a rating over there. So in that this particular survey, if you just look at that, the Asia and Pacific is having a higher percentage of bio-based enzyme market size. So that means it's there is no doubt about that there is a market. And if just I am trying to estimate the same things, and then and just I will conclude about this particular presentation. There is a market, but how much it is for a different aspect. So I have estimated, or I have tried to capture a market of solid waste management. So this is the business value which I have drawn up to the 2047, based on the data of solid waste in India in 2022, where I have some assumption, like I have assumed the growth rate of 8% and 6% growth of solid waste generation rate from the 2022. So these two, three are assumptions are there. And I have just taken that if bioenzymes is useful for solid waste treatment process, and I have assumed that we are not able to tap all the market throughout. So I have taken only the 5% value, although then there is a more than 4,500 million INR industry is there already up to the 2047, according to the establishment solid waste generation. So this is a huge market. And because the research and all those academics and like this kind of knowledge awareness, because I am very you can say less knowledgeable person regarding this enzymes, specifically the detailed science of enzymes, because I have studied in class 10 and 12. But after that, when we have entered into the water domain, so we have to research all those items for the different purpose, like pollutant treatments and other things. So but there is a huge business. And apart from the business, if we are uh, able to create those kind of business for environmental friendly projects, so obviously we are also helping environment in the second terms, because I am not a hardcore businessman. I am that means by heart I am a researcher, and I came into the field, and I would like to advocate the things that if we academics, industry and research people will come together, so there will be a solution. So this is my small and brief presentation. And that's the small already my professional journey he has mentioned. So
like as an entrepreneur, I only learned that means we have to be a solution provider for any kind of problem. So like this is a image. You can see that there are some things that the question is that hang the picture on the wall. So there is one thing is missing, and that is a hammer. Reason being, why I'm just showing this picture, that you have to understand the tools, like you have to understand the process, because you know that you are having all the items. We are having the research on bioenzymes, we are having the uses and applications, we are having other items, but we have to somehow integrate with using the tools. So that is the key of success. So thank you very much. Thank you very much for this time. Thank you, Tiwari sir, for your insight. Anyone, if anyone has question, please raise your hand. So, okay, sir. You have given the benefits, challenges, and consideration of bioenzyme and small details to the enzyme and its solid waste, impacts of solid waste, and use of different enzymes for the industrial waste and enhancement of it, and commercial aspects of enzyme. Sir, thank you, sir, for your wonderful session. Now we are proceeding for the our next speaker, Dr. Gopalji Gopal, an assistant professor at Upka University, Bardoli, Gujarat. उपका Is तरसारी it- यूनिवर्सिटी Okay, sorry, sir. जी Uh, someone an- has question I think written. Okay, please continue, sir. Subbu has written. okay. Dr. Gopal, my question was for the previous speaker. Okay, sir. Yeah, please. Please. Dr. Harinarayan, basically, my question was, what are the kinds of solutions that you are offering to the market? Because you made very valid points. One of the main thing being that the existing chemical cleaners come with so much of clout. They show a very low cost of purchase, and they conveniently hide this. Hide the facts of the kind of pollution and the kind of damage that is being created to the environment. These are all completely hidden. So that was one question. Second thing is, through this forum, like how anti-tobacco lobbies had to fight for almost 100 years before warnings came on cigarette packs, should also through things like BE3, should there be a mandate on existing chemical cleaners to declare that their products are harmful to people as well as environment? So two questions. Yeah, your questions are right. That means we have to do that. Apart from that, because you are aware that in last 30 years, the industry of chemical has raised like anything. Because of that, the industry which is equivalent to that and maybe more environment friendly than the chemical, they are not able to present themselves. So that's how that if we are able to present that these techniques are also equivalent good, maybe cost may be high at the first stage, because you know that the cost is only that means cost reduction is only there in the industry when there is a volume. Suppose if all the solid waste, I'm just assuming that, suppose if they are all the volume what I have shown that it comes to the bioenzymes. That means if there is a clear cut indication from the government or policy side that okay, all those bioenzymes can be used for a 100% solid waste management. But whether we have to assess also that is there the capability of bioenzymes producer to do that or not. So because if that is not there, so industry will not turn out. So my just only remarks on that. What your question is that
we have to prepare for that, and we are as a consultant, what we are when we are trying to do any industrial setup or any engineering on that. So we are bringing all the facts, pro and cons, because when you are setting up industry, in fact chemical industries are also coming with because we have worked with some of the chemical industries, so they are showing their facts also. But what they are trying to, they are trying to that means hide those points which may be bad for their marketing, because for a government agency they are not trying to hide, because there are lots of guidelines and NGTs and all those things are there. So all the establishment in fact in Gujarat there is a special economical zone for a chemical factories. So they and they have allowed more than 20 chemical factories this year only. So that is coming with the process, but we have to also process like that, and we have to develop our all aspects in a one go. It's not like that we are going in a piece and mill, like someone is presenting only the research, or someone is presenting. If the industry is coming, there must be a proper market research and proper technical research, and then we are coming with the facts. Okay, this is the fact, we can able to take this up, and then industry will come into that. So that is my just only remark on your part. And we can go by this group, and we can add all the people who is doing the research on the bioenzymes and other fields, and we club it with the industrial aspects, so that it जी मैं ब्रजकिशोर झा बोल रहा हूँ। जी जी सर, आपका आशीर्वचन ये हम लोग को मिल सके कुछ शब्दों में सर। जरूर हम लोग साथ मिल करके अभी हम लोग मिथिलांचल का नेचर का सस्टेनेबिलिटी को कैसे अटेन करेंगे, रीगेन करेंगे, जिससे कि जो लोग बाहर गए हैं वो बाहर आना, उनका लौटना आवश्यक नहीं है, लेकिन उनका जो नेचर मदर को छोड़ के गए हुए हैं, जो हमारी मदर भी वहीं छुटी हुई है, फिजिकल रूप में तो चली गई है, उनको हम पहुंचा दिए हरिद्वार में, और हरिद्वार से भी हम जुड़े हुए हैं सब तरह से, और वहाँ के उत्तरांचल उत्तराखंड को कैसे, हिमालय को कैसे हम लोग सस्टेनेबल बनाएंगे, उस सब चीज को भी सोच रहे हैं। और अभी जिस चीज सबसे बात हुई है वेटिवर और इस सब वेटिवर और बायो एंजाइम, ये सब वंडर्स है। और इंजीनियरिंग इंटरवेंशंस जो है ना, वो पूरा चीज को इंजीनियरिंग इंटरवेंशंस जैसा हम पहले बताए कि स्कार्सिटी क्रिएशन के लिए भी हो सकता है, और उसी वही इंजीनियरिंग इंटरवेंशंस जो पॉसिबल है इसके लिए कि हम एबंडेंस क्रिएट करें। तो हम लोगों को अभी हमको समझ में आया है कि हम एबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। हमारे जो पंच तत्व है हमारे मिथिलांचल का, वो एबंडेंस में है, हमारे पास सब कुछ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा जो पांचों तत्व है वो एबंडेंस में है, उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन और उसको उसके सस्टेनेबिलिटी के लिए इंजीनियरिंग इंटरवेंशन साइंस टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। और उस चीज को अभी जो मिथिला यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी और बाकी वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ये हमको महसूस हो रहा है कि उनको आगे आना होगा और उनको कोऑर्डिनेट करना होगा। और हम सब जगह से, जैसे हम भी सिंदरी से पढ़े हुए हैं तो सिंदरी का को जोड़ना, BHU से भी पढ़े हुए हैं और बहुत सारे इंडस्ट्रीज, और जो ये ग्रुप जो सब लोग आए, तो उन लोगों से सबसे हम किसी न किसी रूप में, क्योंकि हम नेचर के सस्टेनेबिलिटी के लिए शुरू हुए थे गंगा को बचाने के लिए, तो गंगा को लोग साफ कर रहे हैं। हमारी मिसेस जाते जाते तो वो नहीं रही हैं, तो बोल के गई थी गंगा को साफ होने से बचा लो। तो हम साफ होने से बचा रहे हैं, गंगा को साफ होने से बचाने के क्रम में मुझे समझ में आया कि प्रकृति माँ को बचाना है और उसके सस्टेनेबिलिटी को इनहेंस करना है। गंगा तो खुद ही बच जाएगी, उसको साफ नहीं कर पाएंगे कोई, क्योंकि एबंडेंस क्रिएट हो सकता है और उसके लिए लोगों को इस तरह से दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये इंजॉय करने के लिए ज्ञान को लेकर के, जैसे मिथिलांचल से लोग पूरे दुनिया देश दुनिया में घूम जा रहे थे, उस ज्ञान को लेकर के फिर से जा सकते हैं। लेकिन जहाँ है जो है वो वहां से अभी जो हमारा कम्युनिकेशन का जो सुविधा हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है, उससे पूरे नेचर का सस्टेनेबिलिटी के लिए पॉसिबल है। वो जो जहाँ है वहां से करें, और उसके लिए जो हब है वो मिथिला यूनिवर्सिटी बने, हमारी ये इच्छा है। हम उसमें
पूरा का पूरा सहयोग करने के लिए, वहां पर व्यवस्था करने के लिए आप लोगों के बीच में आते जाते रहेंगे। हमारा भी सब कुछ है अभी भी मिथिलांचल में, और हमारे जो जो एक्सटेंडेड फैमिली है उन्हीं को लेकर के हम कंपनी फॉर्म करना और उस तरह का चीज कर रहे हैं। लेकिन रिसर्च का जो एक हब होना चाहिए वो हम अलग अलग तरह से आप लोगों से बात करेंगे। जो मेरे विजडम सबसे से जो मेरे गांव का नाम है मनपौर, जिसका अगर हम इंग्लिश में उसको बोलेंगे तो वे टू विजडम होगा नाम। हमको आश्चर्य लगता है कि उस समय में कोई हमारे गांव को बेनीपट्टी में है वो, तो कैसे कोई रखा उस तरह से नाम मनपौर, जो वे टू विजडम। और वो संजोग से वे टू विजडम जो है उस चीज को जब हम सोचने लगे हैं तो हमारे बच्चे लोग भी उस तरह को चीज को ये कर रहे हैं। और हम लोग लेट अस ज्वाइन हैंड्स, और हम बहुत तरह के लोगों को जोड़े हुए हैं, और आप सब लोग जुड़ेंगे और इस चीज को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मिथिला यूनिवर्सिटी और वहाँ की महिला इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, ये सुन करके मुझे बहुत खुशी हुई है। तो उस चीज को और उसको हम कैसे मतलब एनर्जी को कैसे ये करेंगे, हार्नेस करेंगे हम। एनर्जी जो है इसमें सोलर एनर्जी को हम सोलर एनर्जी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन वो प्राइमरी सोर्स है। तो इस सब चीज को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग प्लीज बढ़िए। रिसर्च का पूरा ये रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं हम लोग, और माँ को बढ़ाएं। थैंक यू सर आपके आशीर्वचन के लिए धन्यवाद। आपने सर प्रयाग में कुंभ में आने के लिए कुछ बात कही थी, उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ? नहीं, उसमें हम बहुत अधिक नहीं कर पाए हैं। इसमें एक स्पीकर थी नेहा, तो नेहा अभी अब इस एक्चुअली पिछली बार भी हम लोग ट्राई किए थे जब हरिद्वार में था, तो वहाँ उस समय में ये हो गया था, क्या बोलते हैं, कोविड। और इस बार भी हम बहुत अधिक नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन बढ़ाएंगे उसको। बीएचयू के लोग हैं उसमें जुड़े हुए, सब तरह के लोग हैं। हम लोग आप लोगों की सहायता से उसमें क्या हम चाह रहे हैं वो बताएंगे। जैसे आज हम लोग जो बात किए हैं ना, थोड़ा सा बता देते हैं। हमारा जितना डोमेस्टिक वेस्ट है उसको हम सॉलिड वेस्ट है उसको हम सोलर ड्रायर हम लोग यहाँ पर रांची में ये किए हैं। और हमारे लोग बच्चे लोग जो बीआईटी सिंदरी वाले लोग हैं वो बनाए हैं सोलर ड्रायर। उस सोलर ड्रायर से हम पूरा जो हमारा सॉलिड वेस्ट है, बायो वेस्ट है, उसको ड्राई करके हम क्वांटिटी में बहुत कम कर सकते हैं। और मटेरियल हैंडलिंग जो है, ये टेक्नोलॉजी का, ये सीधा इंजीनियरिंग का चीज हुआ कि हम उसको बहुत कम बना सकते हैं। ये मतलब हैंडलिंग बहुत आसान हो जाएगा। और हमारे घर में सोलर ड्रायर का हम हार्डली जो है जो 5 to 7,000 में सोलर ड्रायर हम लोग बनाए हैं, अभी उसको हम परफेक्ट कर रहे हैं। उस ड्रायर से अगर हम सॉलिड वेस्ट को ड्राई कर सकते हैं तो ये हमारा जो हम जो किचन का पानी है उसको हम किचन में ही ट्रीट करके हम जो है उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। बाथरूम के पानी को बाथरूम में रिसाइकिल कर सकते हैं ट्रीट करके, और सिर्फ मेकअप वाटर का जरूरत होगा। और जो हमारा नाइट सॉइल और यूरिन है उसको हाइजीनिकली हम अलग अलग तरह से ड्राइव की तरह से कलेक्ट कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस पूरे चीज को हम चाहेंगे दरभंगा में भी इस चीज को, इस कंसेप्ट को लेकर के हम लोग बढ़े। अलग अलग बीएचयू में भी हम कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग चीज का इसमें बहुत तरह का रिसर्च का जरूरत है, इसमें बायो एंजाइम का भी ट्रीटमेंट का जरूरत है। तो ये पूरे चीज को लेकर के हम लोग बढ़ेंगे। ये यहीं से हम शुरू हुए थे, और वो ये चीज सिर्फ हो जाने से फिर कंप्लीटली रिसाइकलिंग जो है, जो हम लोग पहले का हमारा जो ये था कि वेद का जो ऋचा सब है कि हमको पृथ्वी सूक्त का, तो उसके हिसाब से हमको अपनी कोई भी गंदगी को किसी पानी में डालने की का दृश्यता नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। और उसी से गंगा को हम फिर साफ करने जा रहे हैं, जो साफ हो जाएगी उसमें। वो हम पैसा का मतलब सिर्फ बगलिंग हो रहा है, वो पूरे चीज को हम लोग फिर कभी बात करेंगे। तो इस पूरे चीज को लेकर के हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग करेंगे उसका हो सकता है अगले जो ये होगा उससे पहले हम लोग कर चुके होंगे। हम लोग सब मिलकर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार नमस्कार सर। Now with the permission of our convener, Professor Prem Mohan Mishra, sir, we have come to the last stage, and it is my privilege to offer this formal but very heartfelt
vote of thanks. First and the foremost, I would like to express our deepest gratitude to our distinguished speakers. मैं जब स्पीकर्स का नाम लेता हूं अभी, तो अभी उनके सभी वक्तव्य जो जितना भी उन्होंने कहा है मेरे सामने फिर से आने लगते हैं, उनके स्लाइड्स, उनकी आवाजें मेरे कानों में गूंजने लगती है। धन्यवाद जयश्री मैम, ख्याली मैम, तरु मैम, प्रीति मैम, चंद्रा मैम, आप अस्वस्थ रहते हुए भी हम लोग के साथ जुड़े और अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया। थैंक्स, योर थॉट्स हैव बीन वेरी, योर statements have been very thought provoking and very helpful in our understanding of this topic. अभी एक और हैं ग्रुप जिनको कि एक्सप्रेस थैंक्स बोलना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। योगिनी मैम, लक्ष्य एंड तेजस, you can understand what pressure our Lakshya and Tejas might be having. Tomorrow it was scheduled to have their exams, test, and they are here helping us in coordinating. Thank you, Lakshya and Tejas. Of course, for the first time today we came across Yogini ma'am, but ma'am, how supportive you are, we have seen, and I wish in future our endeavor also you will be with us. And most important, the participants who have been through us in this online meet. Thanks to all of you. Sir, 1 minute, sir. Yeah, please. सर, ये जो हम लोगों ने सेमिनार अटेंड किया है, इसमें अगर पॉसिबल हो तो स्पीकर्स की पीपीटीज अगर मिल जाएं व्हाट्सएप पे या तो बड़ा कृपा होगी, या इसके रिकॉर्डिंग अगर हुई हो तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए तो, क्योंकि हम लोग अभी फर्स्ट टाइम एंजाइम से इंट्रोड्यूस हुए हैं। मैं भी बहुत कुछ सीखना है। हमारे गांव, मेरा गांव मिथिला में है, वहाँ बहुत समस्याएं हैं, सारी मिथिला की चर्चा है, मिथिला यूनिवर्सिटी में फंक्शन हो रहा है, तो बड़ी कृपा होगी अगर स्पीकर्स देना चाहें तो हम लोग फर्दर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनसे, और आगे कुछ प्रकृति के लिए जो करना चाहें, जैसे किशोर सर ने कहा ना, माँ के प्रति अपना कर्तव्य, माँ का ऋण। मैं अभी हम इसके बाद अपने स्पीकर से रिक्वेस्ट करेंगे जो कोई भी शेयर करना चाहते हैं, और कई बार उनके कुछ फाइंडिंग्स होते हैं जो कि पब्लिश नहीं रहते हैं, उनके बारे में वो लोग थोड़ा पॉजिटिव होते हैं, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन जितना वो लोग दे सकते हैं हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि वो शेयर करेंगे। हमारा जो पार्टिसिपेंट का जो अभी ग्रुप है, वो ग्रुप, उस ग्रुप में हम आपके मैसेजेस को, जो भी हमारा मैसेज होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा नंबर आपके साथ है, आप उन सब चीज़ों को मुझे भी मेल पर या मेरे नंबर पर अपने मैसेज को कह सकते हैं, मैं रिस्पॉन्ड करता रहूँगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आवर बीके झा सर and Mishra, Prem Mishra sir, Professor Prem Mishra sir, they and there one more great pillar of this webinar, Preeti ma'am. Of course, that doesn't mean that the others are anyway lesser. They conceived the ideas, and here today speakers have delivered along with the participant, and we have just midwifed the whole process, but very joyful and blissful I am. I hope I can share all my joy with more and more on such opportunities in future too. मैं अभी एक लिंक शेयर कर रहा हूं अभी इस टेक्स्ट बॉक्स में, हमारे चैट में, हम साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये लिंक रहेगा। जो कोई भी ज्वाइन किए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि एक फीडबैक फॉर्म भर दें, और उसके बाद हम लोग कुछ ही दिनों में उनका सर्टिफिकेट्स भी उनके मेल बॉक्स में रहेगा, और या नहीं तो जैसा वो चाहें हम लोग
उनको अवेलेबल करा देंगे। एंड आवर फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन फॉर अस आवर व्हाट्सएप link is available to us. With permission of our convener, I would like to end today's program. So 1 minute. Well, please, ma'am. Thank you so much for taking this to next step. और हमें बिहार में अभी तक हमने कुछ किया नहीं था इतना एंजाइम्स को लेके, बट आपके सपोर्ट से हम ज़रूर अच्छा करेंगे। और हमें ये बहुत ये भी इमरजेंसी है, वी आर सिटिंग ऑन द हॉट फायर, और हमें ये काम जल्दी से जल्दी अपने इकोलॉजिकल चैलेंजेस को सॉल्व करना है, और हमारे पास सोल्यूशन है। हम लोग साथ में अपने इंस्टीट्यूशंस को लेके, अपने सरकार को लेके, अपने बच्चों को लेके, सबको मिलके हमें ये काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। पानी की समस्या सब जगह है, और ये हम सॉल्व कर सकते हैं। तो और वेटिवर और बायोएंजाइम, इट इज़ लाइक अ मिरेकल, इट कैन हैपन, इट कैन चेंज लॉट ऑफ सिनेरियो। और मुझे विद्यानाथ जी का वो बहुत ही अच्छा लगा जब उन्होंने वेटिवर को लेके इतना एड्रेस किया। और पंकज जी और चंदना जी से तो मैं टच में है ही हम लोग, और हम लोग उनके साथ ही काम करें। तो कहने का मतलब कि अभी हमें ये इमरजेंसी है, और हमें साथ में मिलके इसको जल्दी से जल्दी काम को शुरू कर देना है हर जगह, है ना। Before I end, ma'am, let me confess some things. जब हमारे साथ जयश्री मैम जुड़ी थी, हाँ। तो जेएलपीटी मेरा 8-10 साल मैं जापान में रह के आया हूँ। तो उसके बाद तो इसलिए मैं उनको ओहायो गोजामास भी कह पाया। It reminded me. But after my Japanese tenure, I gave up all this scientific. I'm basically from the pure synthetic chemist. So I've been using all inorganic, all polar, non-polar solvents and polluting all the time. I went back to my village, and I was for 3-4 years, I was doing farming. And that time, government was not even talking of the natural farming. So I was doing the natural farming, so that, and now today I realized that had some components of bioenzyme I was always doing. So government is also emphasizing on going back to our roots. We are, and with my interest in Vedas and Vedic way of living, I find that this is not new. This is rediscovering our own self. That's it. Very much. भारत माता हम लोग का आशीर्वाद दे कि हम भारत भूमि के काम आ सकें, प्रीति मैम, संपूर्ण विश्व के काम आ सकें। बीई आप कहाँ सेटअप करने वाले हैं, विच स्टेट? बीई का अभी जो हमारा ऐसा कुछ हमने जगह नहीं किया है। अभी हम लोग बैंगलोर में हैं, लेकिन हम लोग पूरे भारत में काम कर रहे हैं। और हमारी जो टीम जो दूसरे देश में है, वहाँ भी काम चल रहा है। तो अभी ऐसा कोई फिक्स जगह नहीं है। प्रीति जी, मैं यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ जी। मैं आपसे बात करने वाला था, करूंगा भी। नेपाल, हम लोग तो नेपाल और इसके बॉर्डर पर, मतलब इंडिया के बॉर्डर पर हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कुछ उधर की ओर करेंगे। और वैसे तो वहां पर अभी हम यूनिट शुरू करेंगे ही। इन लोग जो महिला कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है, और इसी के लिए हम गए हुए थे प्रिंसिपल साहब से मिश्रा जी से बात करने के लिए, और उसी में ये सब चीज बढ़ा। और हम वेरी मच एक्साइटेड हैं कि ये इतना अच्छा से हुआ है, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उसका हो सकता है वो एक मतलब जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर में कुछ नेपाल में और कुछ इंडिया में इस चीज को लेकर के आसान होगा, सबके साथ जुड़ने में आसानी होगी। तो हम लोग लेट मी एक्सप्लोर दैट। I will and very soon I will be calling you to in दरभंगा। दरभंगा से अभी बहुत आसान है, दरभंगा से तो मैक्सिमम लोग आपके बेंगलोर में हैं। तो देखते हैं हम लोग कैसे क्या करेंगे हम लोग। और ऑन द मतलब प्रिविलेज ले रहे हैं कि यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी पर हमारा दरभंगा, हम उनसे पढ़े नहीं है,
लेकिन अधिकार हम अपना जताते हैं और उन लोगों से सब चीज आगे बढ़ाएंगे। इस अधिकार पूर्वक आपसे बोल रहे हैं कि करेंगे हम लोग। ठीक है। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। Thank you. That shows that this is not, on this note, this is not the end of this event. This event itself is an starter of greater happening, seeking gods to bless us, and may we be working towards in line with the nature, so that we reach greater heights. Thanks to all the participants here. Thanks, sir.